بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج انشاءاللہ آیت نمبر 122 سے 132 تک گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے، اور کچھ ٹاپکس بھی آج آپ سے گرامر سے ریلیٹڈ تھوڑا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آج اس کلاس میں گرامر تھوڑی زیادہ ہوگی. وہ اسٹوڈنٹ جو نئی ہیں یا جنہوں نے کافی عرصے کے بعد آج کی کلاس کو وہ جوائن کرنے جا رہی ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. کوئی چیز اگر مشکل لگتی ہے تو اس کو وقتی طور پہ آپ تھوڑا ٹائم لے لیا کریں، آگے چل کے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں چیزیں، اس میں دہرائی اتنی ہوتی ہے، انشاءاللہ سب آ جائیں گے، پکے ہو جائیں. آئیں جی، تسمیہ آپ سے شروع کرتے ہیں اور آپ آیت کو پڑھیں جی گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا انالیسس کریں گی. میں یہ جو آیت نمبر 121 سے اصل میں یہ ٹاپک شروع ہو رہا تھا، یہ جو رکوع ہے، لیکن وہ پھر میم آیات کم پڑ 121 رہی کے تھی. 122 جی کیا کہا؟ 122 کے 121. جی جی، میں وہی کہہ رہی تھی، اصل میں یہ ٹاپک 121 سے شروع ہو رہا تھا، تو میں نے 121ویں آیت پچھلی دفعہ میں نے کروا دی تھی. اس کی ساری بیک جی گراؤنڈ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی، تو آج ہم وہ اس پہ بات نہیں کرتے. آج ہم آگے چلتے ہیں. اب اس والی آیت میں دو گروہوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس میں خزرج کا ایک بنو سلیمہ اور اوس قبیلے کا بنو حارثہ. تو انہوں نے تھوڑا، جب وہ عبداللہ بن ابی 300 لوگ لے کر الگ ہو گیا تھا، تو ایک انسانی فطرت ہے، انسانی کمزوری ہے، تو تھوڑی جیسے گھبراہٹ محسوس کی ہوگی انہوں نے، کوئی تھوڑا کمزوری محسوس کی، تھوڑا جسے یہاں پہ بزدلی کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہم میرے خیال میں کمزوری کا یہاں پہ میں کرنا چاہوں گی. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے دل دوبارہ سے جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے جمع دیے. لیکن وہ جو 300 لوگ الگ ہو گئے تھے، ان کی بالکل مدد اللہ تعالیٰ نے نہیں کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اگر کمزوری بھی کسی وقت میں کوئی کمزوری بھی آ گئی ہے، تو جیسے ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ مددگار ہوتا ہے. لیکن جو منافق ہے اس کی بالکل کوئی مدد نہیں ہے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اذ ہمت. اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا. اذ ظرفیہ شرطیہ ہے میم. ہمت میں ہاں میم میم مادہ ہے باب نہیں، نون سے. رکیے گا شرطیہ نہ کہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ بس ظرف. ظرف. ہاں، جی شرط والا اس میں رہنے دیں. اور وہ عام طور پہ اذا کا ہم کہتے ہیں کہ بس یہ ظرف ہے، اسم ہے، ظرف ہے، مبنی ہے، اور اس کی ترکیب ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں. ایک ہی ترکیب زیادہ تر. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، اس حرف کے طور پر بھی آ سکتا ہے، جیسے اذا جب وہ فجائیہ آتا ہے جس کا اچانک معنی ہوتا ہے، وہ حرف کے طور پر آتا ہے. تو جی اس بھی اس طرح سے یہ اچانک آواز میں ان کے یہ معنی دیتا ہے، تو یہ بھی حرف کے طور پر استعمال. اور بھی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اس حرف کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، 2-3 کم از کم استعمالات ہیں. اور اسم کے طور پہ بھی زیادہ تر اسم کے طور پر آتا ہے، اور اسم کے طور پہ زیادہ تر شروع میں ملے گا. شروع میں ملے گا تو اس کی ترکیب ایک ہی طرح کی ہوگی. درمیان میں ملے گا تو وہ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے. وہ ہم نے کافی آیات پیچھے دیکھی ہے. اس کی ترکیب میں جلدی سے بتا دیتی ہوں. جب بھی اس شروع میں آئے تو اس ظرف، اس کے بعد والا جملہ مضاف الیہ ہوگا. اس اور حیثو وہ ظرف ہوتے ہیں جو ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں. باقی کبھی ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی. یہ ہمیشہ جملے کی طرف ہوتے ہیں اور عام طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، یہ گرامر والوں کے نزدیک انہوں نے مان لیا ہے کہ یہ مفعول بھی بنے گا ایک محذوف فعل اذکر یا اذکرو کے. ویسے جو ظرف ہوتے ہیں وہ مفعول فی یا متعلق بنتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی یہ ہو گیا. اب ہمت کا بتائیں. ہمت ہاں میم میم اس کا مادہ ہے اور باب نون سے ہمت کرنا. اور طائفتانی اس کا فاعل ہے، اور منکم صفت بنے گا میم. یہ طائفتانی موصوف. ہاں، طائفتانی نکرہ ہے نا، فعل نہیں لگا ہوا. طائف ہوتا ہے، اس کی مؤنث ہوتی ہے طائفتن، اور اس کی یہ آپ کہنے کی یہ مثنیٰ طائفتانی
ताइफतैनी, ताइफतैनी, तो ताइफतानी यहाँ पर ये हालत रफा में तो ये फाइल बन रहा है। शाबाश, मिनकुम उसकी सिफत होगी, मौसूफ सिफत मिलकर अब हम कहेंगे फाइल बने। और जिन बहनों को इस तरह मिलाना मुश्किल लगता है तो आप कह दें ताइफतानी फाइल है, मिनकुम ताइफतानी की सिफत बना दे, नकरा के बाद जार मजरूर आ रहा है। चलें जी, शाबाश। अन तफशला, अन मजदरिया, तफशला, फा शीन लाम मादा बाबे सीन से। हाँ, इसका फाइल अंतुमा। ठीक है। अन सही में मुसन्ना ठीक का सेगा। है, ओके। नहीं, मुसन्ना में व- सिर्फ अंतुमा ही तो नहीं है ना? ये अन मुसन्ना का मुज़क्कर गायब है, ये जिसका वो हुमा। मुजफ्फर गायब, ठीक हो गया। हुमा। जी। हम्म, फाशल, फाशिला, यफशलु, यफशलानी, और मुसन्ना मुज़क्कर गायब का ही बनता है तफशली। अच्छा, देख लेते हैं, मुझे भी आपने कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, करें करें, आगे चलें इसको। वल्लाहु वाव इस्तेनाफिया, अल्लाहु मुब्तदा, और फिर वाव अतफ, नहीं वलीयुहुमा, मुदाफ मुदाफ इलैहि होकर खबर बनेंगे मैम। मुतामुदा, अच्छा नहीं, पहले उसका तर्जुमा करते हैं ना। इज हमत, याद करो जी जब, मैम। लेकिन याद करो को अब जब रहने तुम दें, में जरूरी नहीं हर दफा जब ब्रैकेट्स में लिख लें। हाँ जी, जब। जब तुम में से दो जमातों ने इरादा किया कि हिम्मत हार दें। शाबाश, अच्छा हाँ, तो ये देखे ना, ये मिनकुम आया तुम में से, तो अंत अक्षरा पे ठीक है, आप ठीक कह रही हैं, ये ठीक है, ये इसका फिर अंतुमा ही होगा, रुकिए, ठीक हो जी गया। मैम। वो मैम इसका जी, हुमा फाइल होगा, हुमा। हुमा होगा। बिजू, जी मुसन्ना मुअन्नस है खानसा, मैम। खानसा क्या नाम है, मैं भी बताती हूँ बेटा आपको ये क्या बन रहा है। चले ठीक है, बाज दफा ना ऐसी छोटी छोटी से पॉइंट जो है ना जेहन से निकल जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जी क्या कह रही हैं आप, ये क्या होगा? मैम इसका तफशला का ना मुसन्ना मुअन्नस गायब का सीगा है, ये हुमा फाइल है। ये मुसन्ना मुअन्नस गायब का आप कह रही हैं? जी, ठीक जमात है। के लिए आया है ना। हाँ, मुझे वही लग रहा है, ता देखिए ना, ये फाशिला जी यफशलू से यफशला होता है, वो जो मुसन्ना मुजक्कर गायब का है। और जी, ये बनेगा तफशला, तो ये तफशलानी मोनस का था। ताइफतानी, बस जी, ठीक हो गया, शाबाश, हुमा माशाल्लाह, हुमा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने पता नहीं इधर क्यों ऐसा लिखा हुआ है, इधर लिखा मैंने कुछ था अपने नोट्स में या अपनी बियादुल कुरान में, तो ये जब ये बोली है तो मुझे लगा कि मैंने पता नहीं किस ध्यान में कहीं से सुन के पढ़ के लिख लिया, गौर नहीं किया। जब गौर कर रही है तो वो मैच नहीं कर रहा, शाबाश, ठीक हो गया जी। अच्छा, वो पूछ रही है ये क्या बना जी, बिल्कुल हम इस तरफ आ रहे हैं कि ये क्या बना। देखिए, याद रखें, कुरान पाक में जहां कहीं भी ये अन मजदरिया आया है ना, ये अन मजदरिया, इसके बाद वाला जो सिला होगा इसका सिलातुल मौसूल हरफी इसको कहते हैं। और जो अल्लाजी वगैरह का सिला होता है उसे सिलातुल मौसूल इसमी कहते हैं। ये चीजें याद करने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ। जहां कहीं भी आएगा, कभी कभार ये डायरेक्ट कुछ बन जाता है, क्योंकि ये मजदर है ना, मजदर अन मजदरिया होता है ये। अब ये जो इसके बाद जुमला आएगा, ये आते ही जुमला पर है, जुमला फेलिया पर, ये उसको फिर जुमला नहीं रहने देगा, ना अन ना अन्ना, ये उसको मजदर की तावील में ले जाएंगे, तो ये मुफरत बन जाएगा, एक इसम बन जाएगा। अब इसको आप कुछ भी बना सकते हैं अकॉर्डिंगली, कुछ भी बन सकता है। सम टाइम ये डायरेक्ट बन जाएगा, फाइल बन सकता है, मफूल बन सकता है, मुब्तदा बन सकता है, खबर, कुछ भी। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जो कि हम इस तफसीर में वैसे जाते नहीं हैं, क्योंकि इसमें वो बाज़ दफ़ा हरूफे जारा इसमें महजूफ होते हैं, महजूफ पे हम ज्यादा बात नहीं करते। तो यहाँ पे कुछ हरफे जर महजूफ मानकर इसको आमतौर पे मुतल्लिक किया जाता है, पीछे वाला जो जिसका भी ये वो फेल उसका जो होता है, ठीक है। तो अब अन तफशला बेसिकली मुतल्लिक है, आप इसको यहाँ पे एक बा हरफे जर है जो महजूफ है, तो ये जार मजरूर मिलकर ये मुतल्लिक कर दें आप इसके पीछे जो फेल गुजरा है। चले, बस इतना सहज समझ आ जाए, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये बार बार ये चीजें आएंगी तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ये याद नहीं होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बात दफा हरफ जर मुख्तलिफ होते हैं, तो वो इतना नहीं याद होता है। ये वक्त के साथ एक्सपीरियंस से इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा यहाँ पे ये वाला हरफ जा रहा है। और फिर भी ना पता चले कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि जी उन्होंने जब इरादा किया, दो ग्रोह उनमें से दो ग्रोहों ने, या दो अ, इसका आप जमातें कर लें हाँ या ग्रोह कर लें कि वो बुजदली दिखाएं। अच्छा, ठीक हो गया जी, आगे चलें।
हालांकि अल्लाह उन दोनों का दोस्त था वह अल्लाही वल्लाहु, अल्लाह लफ्ज फलियतवक्कलिल जलाला मुमिनून। मुब्तदा हो गया, वलीहुमा ये वाला जो मुरक्कब इजाफी खबर हो गया, शाबा ये जुमला मैंने इस्मिया। आपने इस वाव को क्या बनाया? हालांकि अल्लाह उन दोनों का दोस्त था। हालांकि, शाबाश, वाव को पहले हालिया भी मैंने बना सकते नाफिया हैं, हालांकि के साथ तर्जुमा ज्यादा खूबसूरत बनेगा। जी किसी को अगर शुरू में नहीं समझ आती इन चीजों की, आप सिंपल वाव को आतिफा कह के और के साथ तर्जुमा कर देते हैं। और अल्लाह उनका, ये हुमा का मतलब है कि वो उधर जा रहे हैं। अच्छा, अगर ये हुमा उधर जा रहा है उनकी तरफ, अच्छा ठीक है, तो अल्लाह उनका मददगार है, था, ठीक है, उस वक्त का हाल है। चलिए इसको मैं बाद में देखती हूँ, उसका कुछ मेरे ज़हन में आया तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आगे चलते हैं, इसको बीच में ना ये इंटरप्शन हो रही है, चले छोड़ दे, आगे चले जाए। वालल्लाही, इसको क्या बनाएंगे? वातफ अल्लाही मुतालिक मुकद्दम फा जजाइया और ये लाम अमर है। ये यतवक्कलिल का वाव काफ लाम इसका मादा है बाबे तफाउल से। मुमिनूना ये इसका फाइल बनेगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। आपने ये यतवक्कलिल लाम कौन सा बताया? जी फल या तवक्कल? अमर लाम अमर कैसे पता चला लाम अमर? मज्जूम है मैम वेरी गुड, इसके। वेरी गुड। कब मजूम होता है? जब इससे पहले कोई जैसे हरूफ आतिफा आते हैं ना, तो फिर ये मजूम हो जाता है। जी और वैसे ये ली था, ली यतवक्कल, ठीक है, ली जी यतवक्कल, लाम भी साकिन था क्योंकि मजूम करता है ना, ये जो लाम अमर होता है, लाम के नीचे जेर दी जी गई है आगे उसको मिलाने के लिए, तो साकिन इकट्ठे हो रहे थे। शाबाश। अब मुतल्लिक मुकद्दम हो गया, तो तर्जमे पे क्या असर पड़ेगा? और अल्लाह ही जोर लगेगा मैम और अल्लाह ही पर लाजिम है नहीं, कि जोर, हाँ कह सकते हैं, आप कहेंगे कि इसमें हसर पैदा हो रहा है, ठीक है। ताकीद और हसर हसर में थोड़ा सा फर्क है, इसको हमेशा ज़हन में रखा कीजिए। अब जब हसर आता है, इसका मतलब है कि बस अल्लाह ही पर, सिर्फ यही बात है। और जब जोर अल्लाह ही ताकीद, पर तो और भी चीजों पे कर सकते हैं, लेकिन जब हसर होता है वो एक ही चीज के इर्द गिर्द, वो उसी को, आप कह लें कि सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, वही हिसार में ले ली जाती है, वही वाली चीज। शाबाश। और अल्लाह ही पर लाजिम है कि मोमिन भरोसा करे। लाजिम है कि मोमिन भरोसा करें। शाबाश। या ये भी कर सकते हैं, और अल्लाह ही पर बस मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। मोमिन माशाल्लाह। चलिए एक दफा मैं इसका फिर कर देती हूँ। याद करो जब, अब आप चाहे तो वो उसको शुरू में बोलने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, बोले तो भी हर्ज नहीं है। जब तुम में से दो ग्रोहों ने या दो जमातों ने, ठीक है, या ये ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी दो जमातें जो तुम में से हैं, मौसूफ सिफत जब इस तरह बनते हैं ना, उनका तर्जुमा ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल कर लेते हैं। जब तुम में से दो जमातों ने इरादा किया कि वो कमजोरी दिखाएं या वो बुजदली दिखाएं, या मजदरिया तो ये भी कह सकते हैं कमजोरी दिखाने का, इस तरह भी कर सकते हैं। हालांकि अल्लाह उनका, उन दोनों का, हुमा, उन दोनों का वली था, दोस्त था, और अल्लाह ही पर बस चाहिए, बस लाजिम है कि मोमिन तवक्कुल करें, या और अल्लाह ही पर बस मोमिनों को तवक्कुल करना चाहिए। ठीक हो गया। चले जी अगली आयत की तरफ चलते हैं, वो भी आपसे ही करवा लेते हैं। अगली भी आप कीजिए, आयत नंबर 123। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लतुन। वाव इस्तिनाफिया लक़द हर्फ़ु तहकीक नसर फेल नून सोदरा मादा बाबे नून से और अल्लाह कुम लफ्ज जलाला क्या मफ बनाएंगी? अल्लाह फाइल बनेगा नसर का। शाबा। और बी बदरिन को क्या बनाएंगी? जार मजरूर। बिबद्रिन मुताल्लिक और शाबा। तो कुम मफूल भी मुकद्दम अल्लाह के। अच्छा, फेल अपने जी फाइल, मफूल बिही और मुतल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। अच्छा, आपने मुकद्दम क्यों जी कहा? ये अल्लाह मफूल पहले आया इसलिए मैम अल्लाह तो फाइल बाद में आया। मफूल को मुकद्दम तब कहेंगे, ठीक है आपकी बात है, मुकद्दम हो गया तो जी आप चाहे ना भी कहें, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है कि इसमें मफूल ने पहले ही आना हो। क्या सिचुएशन है ये? जी क्या नहीं पता सिचुएशन है? मैम।
अच्छा चलिए, इसमें हसर पैदा हो रहा है, एक चीज मुकद्दम हो गई अगर आप कह रही हैं, ठीक है, क्या इसमें हसर पैदा हो जी। रहा है? और चलिए बिला चलिए, सुबायत। देखिए एक यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए सब, कि फाइल और मफूल चार तरह से आ सकते, दोनों जमीर, जी। दोनों जाहिर, एक जमीर एक जाहिर, इस तरह से, और वाइस वर्सा। अगर कभी मफूल जमीर हो और फाइल जाहिर हो, तो फाइल पहले नहीं आएगा, उसको बाद में आना पड़ेगा, मफूल को पहले आपको फेल के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इस सूरत में इसमें हसर नहीं होता है, ठीक है, मुकद्दम हो रहा है वो इस वजह से कि इसे होना ही था। ये नहीं कह सकते थे नासर अल्लाहुकुम, नहीं ऐसे नहीं कह सकते थे, हालांकि जो ऊपर आयत गुजरी है उसमें ये कह सकते थे फल यतवक्कलिल मोमिनून अल्लाह, उसमें कह सकते हैं, अल्लाह को एंड पे आना चाहिए तो वो पहले आ गया, वो असल चीज मुकद्दम होती है। ये तो अंडरस्टूड है कि इसमें आना है, ऐसे चले, मुकद्दम अगर हो भी जाता है तो इसमें हसर नहीं है, ये नॉर्मल इसकी। अभी हम तर्जमा करते हुए फाइल का ही पहले करेंगे, तर्जमा करें। और बिला शुबा यकीनन अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की, ये कह रही है ना, ठीक है। अच्छा आपकी आवाज करती है, अच्छा याद रखें ये जो कद होता है ना, कद माजी पे भी आता है, मुदारे पे भी आता है, ज्यादातर माजी पर आता है। और इसकी तफसीर मैंने पिछली भी कुछ क्लासेस में बताई, आज बस इतना बताती हूँ कि अगर जब माजी पे आता है ना, तो एक तो ये उसमें ताकीद ताकीद तो जब ये माजी पे आएगा ना, इसमें ताकीद का मफहूम अंडरस्टूड है, मुदारे में 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जब ये माजी पे आता है तो हरफु तहकीक तो है ही है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये माजी करीब में भी तर्जुमा उसका करते हैं, माजी करीब में माना ले जाता है, आप इसका यूं भी कर सकती हैं। और बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद की, अल्लाह तुम्हारी बदर में मदद कर चुका है, कर चुके। अच्छा ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको हम ज्यादा ऐसे कभी डिस्कस नहीं करते हैं, मैंने बहुत पहले कभी आपसे शेयर किया था, कि जब भी लक़द आता है ना, तो कुरान पाक में वैसे भी बहुत ही उस्लूब होता है कि कसम और जवाब कसम। तो जवाब कसम अगर जुमला इस्मिया हो तो उसके अपने उस्लूब हैं, जुमला फेलिया हो उसके अपने उस्लूब हैं, उसमें माजी के अपने हैं, मुदारे के अपने, ठीक है, वो सारे मैं बहुत पहले डिस्कस किए थे, फिर कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। आज सिर्फ इतना बता दूं, जब कभी भी लक़द आता है ना, तो याद रखिए ये जवाब कसम बन रहा हो, इससे पहले कसम नजर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, और ज्यादातर कुरान पाक में नहीं है, वो छुपी हुई है, महजूफ हो, तो ये जवाब कसम होता है, इसमें लक़द आता है, और ये माजी होता है आमतौर पर। अगर ये जुमला इसमिया जवाब कसम बन रहा हो ना, उस पर इन्ना लाम ताकीद या दोनों आ जाए, और अगर मुदारे जवाब कसम बन रहा हो तो उसमें वो लाम ताकीद आ सकता है, नून सकीला आ सकता है, नून खफीफा आ सकता है, कॉम्बिनेशन आ सकता है, बस फिक्स हो, ठीक है, काफी है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये हम वैसे कम ही शेयर करते हैं। अब इन्होंने किया कि वो मदद की, वो भी ठीक है, वैसे मदद कर चुका है, ये ज्यादा बेहतर होता है। कद का तर्जुमा कर चुका है, माजी करीब के अभी अभी हुआ है, और यकीनन ऐसा ही था। अब ये जो पिछली आयत है वो वो गज़वा ओहद के कॉन्टेक्स्ट में, अब यहाँ से कुछ आयत अब फिर गज़वा बदर की तरफ जा रही हैं, कि बदर में क्या हालात थे, उसमें कितने थोड़े लोग और थोड़ा सामान था, जंगी सामान, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मदद की, किस किस तरह मदद की वो भी अभी हम देखते हैं। तो अब इसको आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, पहले चलिए आप पहले आयत मुकम्मल कर, वो अंतुम अज़िल्ला। वाव हालिया में अंतुम मुब्तदा खबर और मुब्तदा और खबर मिलकर हाल बनेंगे वाव का। अब ये ना कहें वाव का हाल बनेंगे, ठीक है, ये जो नहीं। वाव होती है ना, किधर गया, जी। इसका भी याद समझ भी ना आते, आगे जाना पीछे, एक सेकंड, तो ये जो वाव होती है ना, जी। वाव का हाल नहीं होगा, वाव तो अब यूं कह लें कि, अच्छा यूं समझे, देखिए एक हाल दो तरह से आता है, एक हाल होता है जो कि मुफरद होगा और नकिरा होगा, मंसूब होगा, वो आप आराम से पहचान लेंगे, अगर वो किसी का मफूल भी नहीं बन रहा तो आमतौर पे हाल बनता है, किसका, वो पीछे जुलहाल आपको मिल जाएगा, जुलहाल हमेशा मारिफा होता है, और जो हाल होता है वो नकिरा होता है। तो जुलहाल का एराब कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हाल है ना मुफरद वाला, उसका हमेशा मंसूब होगा। फिर अदद और जिन्स में ये दोनों मैच करते हैं। अच्छा अगर जुमला आए ना, तो
जुमले में फिर क्या होता है, बाज औकात एक जमीर होती है जो पीछे जुल्हाल की तरफ जा रही होती है, बाज औकात नहीं भी हो सकती। अच्छा, बाज औकात जमीर होती है तब भी या नहीं होती तब भी ये वाव हालिया बीच में लगा देते हैं, और अगर वाव हालिया आ जाए ना तो बस वो काफी होता है पीछे जुल्हाल की तरफ लौटने की। अब ये सारा जुमला हाल बन रहा है, पीछे किसका हाल बन रहा है वो हम देख लेंगे। तो ये जिनसे बात की जा रही है, ये नासरा कुम, ये कुम जमीर, कि तुम्हें अल्लाह ताला ये मदद दे चुके हैं हालांकि तुम कमजोर थे, तो ये उनका हाल। ठीक हो गया, अब ये पूरा जुमला उनका हाल जी। बन। तो वाव एक तरह का कनेक्टर होता है जो कि उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, बस ये काफी होता है बाज़ औक़ात। हमें वो ज़मीर ढूँढने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली हम ज़मीर ढूँढते ही नहीं। हालाँकि ये उसूल होता है कि जब जुमला 4 चीज़ें बन रहा हो, जब जुमला खबर बन रहा हो, जब जुमला सिफ़त बन रहा हो, जब जुमला हाल बन रहा हो, जब जुमला सिला बन रहा हो, तो उसमें एक ज़मीर ज़रूर देखते हैं कि क्या वो जिनकी वो खबर है, जिनका वो हाल है, जिनका वो सिला है, जिनकी वो सिफ़त है, उनकी तरफ मैच कर रही है वो ज़मीर। देखिए हम नहीं करते, बस अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मैच कर ही रही होती है और मेरी कोशिश होती है कि हम सिंपल रखें। अब क्लियर है आपको? ठीक है, अब आपने ये नहीं कहना जी। वाव का हाल। देखिए मैं फिर जी। पीछे चली गई। वो अंतुम अज़िल्ला, तो अब ये जो अंतुम अज़िल्ला जुमला इस्मिया बना है, ये अब पीछे उनका हाल है, तो जी इसका तर्जुमा करें। हालांकि तुम निहायत कमजोर थे। ठीक है, शाबा, ये एक वजन पे है, इसको भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, बस दाल लाम लाम इसका मतलब होता है, वैसे ये जलील के माने में भी आता है, लेकिन नरम करना, नरम होना, और कमजोरी के माने में भी है, हालांकि तुम कमजोर थे। ठीक है। अच्छा जी, फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, इसको जल्दी से बस तर्जुमा करते हैं, ये हम बहुत दफा कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल है, बस फा बता दें बस क्या है। बस अल्लाह फा फसीहा है मैं। अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, जिन बहनों को नहीं पता चलता ना कि ये क्या है, ये इंशाल्लाह एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा जब आपको ये याद होगा ना कि वो फा जो के जवाब शर्त पर आता है, और वो किन किन चीजों पर आता है। वो जुमला इस्मिया पर आता है, अगर जुमला इस्मिया जवाब शर्त बनता है, अमर पर आता है, नहीं पर आता है, नफी पे आता है, इस्तिफाम पे आता है, ये कद पर आता है, ये लन सा सोफा, इस सब पर आता है। अगर आपको ये याद है ना, और जब कभी ये अचानक से इनमें से कोई चीज आ जाए और उस पर फा लगा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फा जजाइया या फा राबिता है, और ये पीछे इसकी शर्त महजूफ है। शर्त महजूफ है इसीलिए इसको फा फसीहा कहते हैं, वैसे ये फा जजाइया ही है। अगर शर्त नजर आ रही होती तो इसी का नाम फा जजाइया या फा राबिता होना, तब शर्त नहीं है तो सिर्फ जवाब शर्त है, तो फा फसीहा। और किसी को नहीं पता चलता तो छोड़ दें, बस आगे चलें, बस तर्जुमा करते हैं, बस ये बहुत बस सिंपल है, इसको नहीं हम करेंगे। अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र अदा करो। शाबाश, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। आप म्यूट कर दें, एक दो छोटी छोटी बातें मैं इस पे शेयर करूंगी। जी यार। अच्छा, ये भी बड़ा प्यारा एक पॉइंट था कि अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र अदा करो। इसमें अल्लाह का इसम और खबर मिलकर ये यहाँ पर ये अलग जुमला बनता होता है। ठीक है, इसे जुमला तालीलिया कहते हैं, इसको छोड़ दें। ये एक हमेशा अलग होता है जब भी ला अल्लाह आता है। बाकी ला अल्लाह का आपको पता है कि उसका तर्जुमा इसमें उम्मीद और वो क्या होता है, उम्मीद और अंदेशा पाया जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई बात कर रहे होते हैं तो फिर इसका तर्जुमा उम्मीद या अंदेशा यानी कि शायद वगैरह के साथ नहीं करते, ताकि के साथ करते हैं ज्यादातर। उसमें फिर ये है कि वो पक्का होता है। ठीक है जी। अच्छा, बस तुम अब इसमें ये कि डरने की बात क्यों आई, ये बहुत प्यारा पॉइंट है कि आप अल्लाह से डरो ताकि तुम शुक्र करो। एक्चुअली जब अल्लाह ताला का डर होता है ना, जब तकवा होता है, तो तब इंसान जो भी अपने काम अपने अमल करता है, अपने फैसले करता है, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान कर और बड़े वो अदल से इंसाफ से करने की कोशिश करता है, डरते हुए एहतियात से करता है। और जब वो सही फैसले करता है तो उसके फिर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर वो वाकई शुक्रगुजारी आती है इंसान को। बाकी इसकी बहुत सारी मिसालें, अब इतना टाइम नहीं है यहाँ पे, मुझे कुछ और भी आपसे शेयर करना था। अच्छा, इसमें रुकिएगा एक सेकंड, इसमें कुछ बदर के बारे में तो मैंने कोई डिटेल इतनी, लास्ट टाइम थोड़ा सा मैंने आपको गज़वा ओहद के बारे में बताया था। गज़वा बदर का इंशाल्लाह अगली सूरतों में किसी में ये चलते इसका बहुत डिटेल से आएगा, तब भी देखेंगे। बाकी आप सबको पता ही होगा कि बदर एक चश्मे का नाम था जो मक्का और मदीना के बीच में था, उसके मालिक के नाम पर था। बाकी जब ये हुआ है, और फिर इसमें क्या था, 313 ये मुसलमानों की जमात थी और वो लोग कितने थे, क्या था, ये सारी डिटेल यकीनन आप कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे, आप जानते होंगे। अब अल्लाह ताला ने मदद कैसे फरमाई, तो ये तफासीर में है कि अल्लाह ताला ने कम अज कम 4 तरह से मुसलमानों की मदद फरमाई। एक, अल्लाह ताला ने हवा का रुख इस तरह से कर दिया था कि वो कुफार के लश्कर की तरफ मोड़ दिया था, तो वो जो रेत थी वो उड़कर उनके लश्कर की तरफ जा रही थी, और ये जो
صحرائی علاقے ہوتے ہیں، ان کا جو یہ ریت کا طوفان ہوتا ہے یہ بہت پینفل، تکلیف دہ، اس میں بالکل مفلوج ہو جاتا ہے انسان۔ نمبر 2، بارش ہوئی تھی۔ بارش سے پھر کیا ہوا تھا، وہ اس طرح سے یہ سچویشن تھی کہ جو مسلمان تھے وہ بلندی پر تھے، کافر تھوڑا سا ان کی وہ نیچے تھے، اترائی والی جگہ پر تھے، تو وہ وہاں پہ پانی جمع ہو گیا تو دلدل ہو گئی، ان کو بہت مشکل ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو پانی بھی بہت وافر مقدار میں مل گیا ان کو استعمال کے لیے۔ اچھا جی، نمبر 3، پھر وہاں پہ فرشتوں کا نزول۔ اس کا قرآن اور حدیث دونوں سے ملتا ہے کہ وہاں پر 1000 فرشتوں سے مدد کی گئی تھی۔ اچھا، آج کی آیات میں ہم آگے 3 اور 5 بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے تفسیر کا، یہ آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ بدر میں ہی پہلے 1000 سے ہوئی، پھر 3 اور پھر 5، کیونکہ جتنا انسان کا ایمان بڑھتا ہے اس حساب سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ تو آپ عام روٹین میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سب نے محسوس کیا ہوگا۔ اچھا، پھر ایک اور رائے ہے کہ نہیں، 1000 بدر میں تھے، غزوہ بدر میں، 3 اور 5 غزوہ احد میں، اور وہ بھی ہونے تھے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ ان کی مدد اس طرح سے نہیں ہوئی۔ خیر، پھر اور بھی رائے ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کیا ضرورت ہے فرشتوں کے بھیجنے کی، اللہ تعالیٰ تو کن کہہ دے تو سارا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، فرشتہ بھیجنا تھا تو صرف ایک جبرائیل علیہ السلام کافی تھے، جیسے انہوں نے قوم لوط کو بستی کو الٹ کے رکھ دیا، ایک فرشتے نے، تو اتنے فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے، تاکہ وہ تمہارے دل اس سے اطمینان پائیں۔ تو انسان کی نیچر ہے، اس کو تعداد اچھی لگتی ہے، وہ اٹریکٹ ہوتا ہے تعداد کی طرف۔ تو اب وہ جب تعداد زیادہ ہوئی تھی غزوہ بدر میں خاص طور پہ، تو اس میں مسلمانوں نے کانفیڈنس فیل کیا، اور جو کفار تھے انہوں نے لوز کیا کانفیڈنس۔ باقی اس کے بارے میں بخاری میں بھی وہ ملتا ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے، اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں۔ پھر ایک بڑی پیاری ایک دفعہ جبرائیل جب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا آپ اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں سے افضل۔ تو جبرائیل نے آگے سے فرمایا کہ اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بھی دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں، بخاری سے یہ روایت ہے، اور اس میں قرآن اور سنت سے ان کا کنفرم ہے، لیکن غزوہ احد کے بارے میں وہ ہے کہ جی ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے بس۔ اچھا ہاں، چوتھا پوائنٹ رہ گیا، مسلمانوں کی مدد چوتھے طریقے سے پھر یہ ہوئی تھی کہ جب یہ اللہ کی طرف سے ان کو مسلمان کی تعداد زیادہ نظر آ رہی تھی۔ اچھا، یہ ہم نے بڑی پیاری آیت پیچھے گزری تھی، بہت مزے کی آیت گزری ہے، یہ سورہ آل عمران میں تھی، جسے ہم نے 4 طرح سے انالیسس کیا تھا۔ اس کی جو ضمیر تھی فاعل کی اور مفعول کی، وہ ہم کفار کی طرف بھی لے کے جا سکتے تھے، مسلمانوں کی طرف سے، اور ہم نے ہر طرح سے ترجمہ کیا تھا، لیکن زیادہ یہی ہے کہ کافروں کو ہی مسلمانوں کا تعداد زیادہ نظر آ رہی ہے۔ چلیں جی، باقی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اطمینان کے لیے یہ سارا، دلوں کے اطمینان کا حصول تھا، انسان کو تعداد دیکھ کر ذرا تسلی ہوتی ہے۔ باقی تعداد کا ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعداد میٹر نہیں کرتی، جیسے غزوہ حنین میں ان کو مسلمانوں کو تھوڑا اپنی تعداد کی وجہ سے جب اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے تو بھی غزوہ احد جیسے حالات ہو گئے تھے، تو اصل چیز تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک انسانی نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی تھی غزوہ اس میں بدر میں بہت طرح سے، اس میں ان کے جو 70 لوگ مارے گئے تھے، اس میں ان کے بڑے بڑے سردار انکلوڈنگ وہ جو ابو جہل سمیت، صرف ابو سفیان بچے تھے، باقی سب اس وقت جتنے بھی تھے سب مارے گئے تھے یا قید ہو گئے۔ چلیں جی، یہ تھا تھوڑا سا غزوہ بدر کے بارے میں۔ اب ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں کیا ہے، اس تقولو، ہاں، جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مومنوں سے ٹھیک ہو گیا جی، یہ کن سے کرواتے ہیں؟ یہ صفیہ سے کرواتے ہیں، آئیں صفیہ، یہ دونوں آیتیں جو ہے نا یہ صفیہ کرے۔ جو اور بھی سنانا چاہتے ہیں ابھی سے ہینڈ ریز کر دیجئے تاکہ مجھے اینڈ تک اندازہ ہو جائے کتنی بہنوں سے سننا ہے۔ صفیہ آئیں، اور سمپل سی آیات ہیں، اس میں میں جلدی سے بتا دیتی ہوں، تمہارا ٹائم بچ جائے گا۔ صفیہ آئی نہیں ہے، شاید مجھے نہیں آواز آ رہی صفیہ آپ کی۔ دیکھیں یہ بھی عز سے شروع ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر جو آیات عز سے شروع ہوئی ہے نا، یہ پچھلی والی عز بھی اور یہ بھی، اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ پیچھے جو پہلے ایک عز گزرا ہے نا پچھلی کلاس میں جو ہم نے پڑھا تھا، یہ اس کا بدل بھی آپ بنا سکتے، نہیں تو آپ نیا جملہ بھی شروع کر سکتے۔ اچھا، تو ترکیب وہی ہے، اس کو اب چھوڑ دیں۔ آگے تقولو آ رہا ہے، انتا اس کا فاعل ہے۔ اب جب بھی قالا یقولو آتا ہے اس میں 3 باتیں دیکھنی ہوتی ہیں جو مل جاتی ہیں عام طور پہ، کبھی نہیں بھی تینوں ملتی، 2 مل جاتی ہیں۔ فاعل دیکھتے ہیں، کہہ کون رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، وہ لام کے صلہ سے آتا ہے، وہ متعلق بنتا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، وہ مفعول بھی ہوتا ہے، مقول القول یا مقولہ۔ اس میں صفیہ آئے،
तकूलू का फाइल मैंने बता दिया, लिल मोमिनीना जार मजरूर मुतल्लिक हो गए। अब मकूलुल कौल बताएं। ये मुझे सफिया की आवाज नहीं आ रही। राबिया जी आप आ जाए, पहले आपसे सुन लेते। मैं राबिया जी से और मोमिना जी से थोड़ी और तरह की आयत छुपाना चाह रही हूँ, पहले आप आ जाए। ये मुझे लग रहा था सिंपल है। जी चले अस्सलाम कीजिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप ये मकूलुल कौल से शुरू करेंगी, अल्लन यकफियकुम। से शुरू हुआ, अल्लन यकफीकुम से मकूलुल कौल शुरू हुआ, पूरा यहाँ तक आखिर तक। और फिर पूरा बताएं। अली आ हरफ हमजा क्या है? इस्तिफाम है लन जी। क्या है? जी ठीक, शाबाश, ठीक जा रही है। लन क्या है? लन हर्फ नफी है, ये मजारे से पहले आता है, मजारे को मजदूम करता है और नहीं, मुस्तकबिल हरफुल के नफी तो है, हरफुल नफी तो है, साथ आप कहेंगी हरफ ये नासिबा भी है, हर्फ मजदूम नहीं नासिबा करता, जी। ये हाँ मंसूब गलत बोल करता है। रहे हैं। जी जी हाँ, मंसूब करता है जी। और और यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्योंकि ये वो सीगा जी है, उन 14 में से कुछ सीगे होते हैं जिन पर इसका मजूम होना या मंसूब होना मुदारे का नजर आता है, कुछ में नून जी गिरता है। तो ये हमने अब उसमें फिर अंदाजा करना होता है कि वो मंसूब कर रहा है, ये मजूम कर रहा है, इस पे नजर आ रहा है क्योंकि ये कफा जी। यकफी दूसरा वो पहला सीगा है, तो इसमें ये होता है यकफी। तो यहाँ कैसे पता चल रहा है कि ये मंसूब कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जबर लगा हुआ है। यहाँ पर जबर आ गई है, और लन जो है ये माना को आमतौर पर मुस्तकबिल में ले जाता है, और तकबीर ताकीदी जबरदस्त नफी हरगिज के साथ इसका माना आप कर सके, नहीं तो जहन में रखना है। कुम मफूल भी हो गया, जो भी फेल के साथ अटैच जमीर होती है वो मफूल भी होती है। शाबाश, यहाँ तक का तर्जुमा कर। यहाँ तक का हुआ, आलन यकफीकुम, क्या तुम्हें किसी तरह क्या तुम्हें काफी नहीं होगा, क्या तुम्हें किसी तरह काफी नहीं होगा। ठीक है, जब आप नबी के वसल्लम जब आप मोमिनों से फरमा रहे थे क्या जी तुम्हें हरगिज काफी नहीं होगा, ठीक है, हरगिज अगर सूटेबल नहीं भी लगता तो चाहे ना लगाए, लेकिन जहन में आपने रखना है। बाकी ये जो कफा यकफी होता है ना, ये बाब दौराबा से आता है, और ये लाजिम और मुतद्दी दोनों माना में इस्तेमाल होता है। कुछ अफाल ऐसे होते हैं जो एक ही बाब से आते हैं, और वो लाजिम भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मुतद्दी भी, उनकी कुछ अलामात होती हैं। ये आमतौर पर जब लाजिम के तौर पर आता है तो इसका जो फाइल होता है ना, उस पर बा का सिला आता है जो कि बा जायदा होता है। और जब ये कफा यकफी मुतद्दी के तौर पर आता है तो फिर इस पे बा का सिला नहीं होता है इसके फाइल पर, और इसके दो मफूल होते हैं कि किसको बेनियाज किया और किससे किया, और जरूरी नहीं है दो हो, लेकिन ज्यादातर इसी तरह है, ठीक है। तो अब आगे, आई युमिद्दाकुम, आगे अन मस्दरिया आ गया, युमिद्दकुम, युमिद्दा है, ये युमिद्दू था, लेकिन इसकी वजह से ये भी जो है अन की वजह से ये मुदारे मंसूब हो गया। मादा आप जल्दी से बता दें। जी मीम दाल दाल बाबे फाल से। अब शाबाश, अलामते मुदारे या वाली आती है। तो नई स्टूडेंट्स और जो जिन्होंने बहुत देर बाद, जो अक्सर लेट अब ज्वाइन कर रही हैं, तो मैं सबको रिवाइज करवाना चाहती हूँ। अलामत मुदारे जब पेश वाली आती है, देखिए जब माजी के पहले हरफ पर पेश होगी ना, तो उसकी एक ही पॉसिबिलिटी होती है, वो मजहूल होता है। कि जब मुदारे पर पेश होती है उसके पहले हरफ पर, तो उसकी 4 पॉसिबिलिटी होती है, या वो मजहूल होता है, या मजीदुन फी अबाब के पहले 3 अबाब में से कोई एक हो सकता है। तो मजहूल नहीं है क्योंकि इसका जो आइन कलिमा है वो फिर जबर वाला होना था। खैर ये वो नहीं बन रहा, बस ये बाबे फाल से आ रहा है। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक खोल के बताऊं, या खुद से कर लिया करें, माशाल्लाह तैयारी करते हुए भी इस पर नजर डाल लिया करें। युमिद्दा, शाबाश, तो बाब ए फाल से हो गया, मीम दाल दाल फाल से मफूल हो गया, रब्बुकुम मफूल मुरक्कब भी हो गया, इजाफी होकर के फाइल बन गया, क्योंकि फाइल रब हो गया। रब्बू रफा हालत में, इसलिए ये फाइल बन गया। शाबाश, मुरक्कब इजाफी का मुदाफ के उसके एराब से पता चलता है कि इसका क्या है एराब, क्योंकि मुदाफ लेने तो होने ही मजरूर है, मुदाफ से पता चलता है। आगे भी सलासती आलाफी, बिसलासती आलाफिन, ये मुरक्कब इजाफी बन जाएगा, और ये बा असल में हरफ जर है, तो सलासती आलाफिन मुरक्कब इजाफी है, और बा हरफ जार की वजह से ये मजरूर हो जाएगा मुरक्कब इजाफी, फिर ये मुतल्लिक बन जाएगा। मुतल्लिक फेल हो गया। जी मुतल्लिक फेल हो जाएगा। शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। मिनल मलाइकाती को क्या बनाई? मिनल मलाइकती मुरक्कब जारी है, और मुनजलीन इस्मुल
मफऊल है, नून जा लाम बाबे आल से नाजिल करने वाला। और मसदरिया का यहाँ से युमिद्दाकुम से लेकर के मुंजलिन तक ये पूरा सिलतुल मौसूल हरफी भी बनेगा। अन और फिर मसदरिया के मौसूल सिला मिलके क्या बनेंगे? मौसूल सिला मिल करके ये पूरा मखलूल कौल बन जाएगा। हाँ नहीं राबे जी, मैं आपको भी बताती हूँ, एक सेकंड जी मुझे जी ना एक मिनट दीजिएगा। मैं आपको पहले एक एक लफ्ज को मैं बताना चाह रही थी। देखिए मुंजलीना बिल्कुल ठीक कहा, नून जाल लाम बाबे इकबाल का ये वो है इसमुल। अच्छा, अगर ये इस्मुल इसमुल फाइल होता ना तो ये होना था मुंजिलीना। उसमें इसमुल फाइल जब बनता है ना मजीदुन फी से, तो उसके आइन कलिमा के नीचे जेर होती है। जब आइन कलिमा पर जबर होती है तो फिर वो इसमुल मफूल होता है। और आमतौर पर जब मीम पर पेश आए ना तो याद रखें या वो इसमुल फाइल होता है या इसमुल मफूल होता है ज्यादातर। वैसे और भी कुछ हो सकता है लेकिन ज्यादा यही होता है। अच्छा, मुंजलीना मुंजलूना था, असल में था अनजला युनजिलु मुंजिलुन वाहिद, मुंजिलूना जमा, मुंजिलीना मुंजिलीना। तो ये किस हालत में? ये मजरूर है, मुंजलीना नहीं ये ना मंसूब की है, आमद ये से। हालत नसब में, इसको हम हाल बनाएंगे अल मलाइका के। मैम इसी को पहचानने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, सबको होती है, घबराहट। कोई बात नहीं, बस लगी अच्छा रहें सुनती रहें पढ़ती रहें, अल्लाह जी जी, बरकत देगा इंशाल्लाह। अब देखो आपने होता देखी, जब मैं की बार वजह बार कहूंगी ना तो ये चीजें जी बार बार आएंगी तो इंशाल्लाह हमें पक्की हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, किसी को भी नहीं पहली दफा पता चलता। मैं आपको बता दूं, कोई किसी जी कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े उस्ताद भी तैयारी करके आते हैं, बगैर तैयारी के थोड़ा बहुत बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि 100% कोई अपना नहीं दे सकता। जब तक कि अल्लाह का फजल ना, अल्लाह का करम ना, मैं आपको सही बता रही हूँ। बिल्कुल ना परेशान हुआ करें, कोई ऐसी बात ना दिल में लाया करें, ये नेगेटिव बातें होती हैं। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ठीक हो गया। मुंजल देखें, अगर आपने ये पहचान लिया कि ये इसमुल फाइल है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मीम पर पेश है तो ये मजीदुल फी से आया हुआ है। क्योंकि अगर ये सुनासी मुजर्रद से होता तो इसने नाजिलुन के वजन पर, फाइलुन के वजन पर होना था। तो मुंजलुन असल में क्या था, मैं फिर दोहराती हूँ। अनजला युनजिलु मुदारे के पहले सीगे से बना, मुंजिलुन इस्मुल फाइल, मुंजलुन इस्मुल मफूल, मुंजलुन की जमा मुंजलूना, उसकी फिर रफा की नसब और जर बनी मुंजलीना मुंजलीना। इससे पहले ना कोई हरफ जर आ रहा है, ना कोई ये मुदाफ इलैह बन रहा है, ना ये किसी को पीछे ऐसी चीज को फॉलो कर रहा है जो कि मजरूर है। तो ये फिर ये मंसूब है। तो क्यों मंसूब है? या तो ये मफूल भी बनेगा, नहीं बन रहा है, ऐसा नहीं है, ये हाल बन रहा है। ये चीजें ऐसा ऐसे एक्सपीरियंस से आ जाएंगी इंशाल्लाह। मैं पूछना ये चाह रही थी, जी ये अल मलाइका का हाल है। अच्छा, मिनल मलाइका को आपने क्या बनाया? मुरक्कब जारी, ये इसका मिनल मलाइका का ये हाल है, तो ये जुल्हाल हो गया मिनल मलाइकती। नहीं, जुल्हाल सिर्फ अल मलाइका बना, मीन नहीं अच्छा, बना। मलाइका था। हाँ ये जी जार जी, मजरूर को क्या बनाएंगे? ये जार मजरूर मुतल्लिक भी बन जाए इसका, नहीं अच्छा, समझ आ रहा इसके मैम बारे में ना, आपके। इसकी कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, इसकी काफी तरकीब है। मैं आपको जी एक वाली बताती हूँ। अगर जी किसी को समझ आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि गिनती याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गिनती हाँ का थोड़ा सा नॉलेज हो ना तो बंदे को फायदा बहुत होता है। मैंने जी पिछले साल तो बहुत मेरे ख्याल में करवाई थी पुरानी स्टूडेंट्स को, अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवा करवा के ही मुझे आई थी और अभी तक याद है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गिनती की पूरी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। 3 से 10 तक की गिनती आपको मुरक्कबे इजाफी की शक्ल में मिलेगी, जी लेकिन उसका जो मादूद होगा ना वो मिलेगा जमा मजरूर। अच्छा, 3 से 10। अब 100 और 1000 की गिनती भी मुरक्कबे इजाफी में मिलेगी, लेकिन उसका जो मादूद होता है ना जिसे गिना जा रहा है वो जमा मजरूर नहीं होता, वो वाहिद होता है, वाहिद मजरूर। तो असल में अब जिसे गिना जा रहा है वो है मालिकिन, ठीक है, वो क्या है, जी। मालकिन, मालकिन, ठीक हो अच्छा, गया। ये भी अब जो है, गिनती अल्लाह याद रखें, गिनती आम तौर पर आप कह लें मुमय्यज बनकर आती है, इसमें इबहाम होता है। मैं अभी थोड़ा सा आपको मुमय्यज की डिटेल बताऊंगी इंशाल्लाह, बस सुनती जाएं अभी। तो जब तक आप आगे से ये ना कहेंगी, जैसे मैं कहूँ कि मैंने 3 किलो लिए, फिर क्या 3 किलो लिए, जब तक वो इबहाम नहीं दूर होगा बात क्लियर नहीं होती। तो गिनती मुमय्यज होते हैं, मुमय्यज होती है, इसके आगे तमयीज में आना होता है। तो तमयीज जो है इसकी
وہ اصل میں تھی ملکن، وہ واحد مجرور ہے، ٹھیک ہے. اور من الملائکہ اس ملکن کے لیے اس کی صفت ہے، تو موصوف صفت مل کر تمییز بنیں گے، کیونکہ گنتی جب آئے گی اس نے ممیز بننا ہے. آپ پکا پکا قاعدہ یاد رکھیں، جب گنتی آتی ہے، وزن آتا ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، تو وہ ممیز ہوتی ہیں. آگے جب تک ان کی تمییز نہ آئے بات کلیئر نہیں ہوتی. تو اصل میں اچھا کسی کو یہ مشکل لگا تو اتنا تو آپ یاد رکھیں کہ گنتی ممیز ہے، تو آگے تمہیز آنی ہے، تو چلے من الملائکہ کو آپ تمہیز کہہ لیں، کیونکہ تمہیز بھی بعض دفعہ دو طرح سے آ سکتی ہے. ممیز تمہیز مل کر پھر یہ با حرف جر کے لیے مجرور اور جار مجرور ہو کر پھر یومدہ کے لیے متعلق فعل ہو. اب سنیں، اب اگلی بات، ایک چھوٹی سی غلطی آپ سے اور ہوئی ہے، وہ ذرا غور سے سنیے گا، کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. اب یومدہ کم فعل، اپنے مفعول کم ضمیر، ربکم فاعل، اور بھی ثلاثت آلاف من الملائکۃ منزلین، یہ سارا جار مجرور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، اس سے پہلے ان لگا ہوا ہے، ان نے آنا ہی جملہ فعلیہ پر ہوتا ہے زیادہ. تو ان جب آتا ہے تو جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا. اب جملہ فعلیہ نہیں رہے گا، مصدر بن جائے گا، کائنڈ آف اسم بن گیا، مصدر کی تعویل میں لے لیتے ہیں اس کو. یہ مفرد ہو گیا. اب اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ آپ کو لگا کہ مفعول ہے، پہلی دفعہ دیکھنے میں بالکل ایسا لگ سکتا ہے کہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب مدد کرے، لیکن اگر آپ اس کو پراپر ترجمہ کریں نا کہ تمہارے رب کی مدد کرنا کافی نہیں ہے، تو وہ فاعل بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب لن یکفیکم، یکفیکم فعل، اس کا فاعل اس کے اندر، ہوا کی ضمیر، کم اٹیچ ضمیر اس کا مفعول بھی ہی، اور فاعل اس کا وہ بعد میں آ رہا ہے. یہ ان سے لے کے منزلین تک سارا فاعل ہے، اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جملہ فعلیہ ہو کر کیا بنا؟ الن یکفیکم، یہاں سے لے کر یہ کیا بنا؟ یہ مقول القول ہو گیا. ماشاء اللہ مقول القول بن گیا. تو تقولو فعل اپنے فاعل انتا متعلق للمومنین، اور یہ سارے مقول القول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو. ترجمہ کرتے ترجمہ جب اوپر سے کریں اس پہ، ہاں اس سے کریں جب جب تو ایمان والوں سے کہہ رہا تھا کیا تمہیں کسی طرح کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو نازل کیے ہوں، جو نازل کیے گئے ہوں. جو نازل کیے گئے، اس پر مفعول ہے نا، اور حال بن رہا ہے جو نازل کیے گئے. ماشاءاللہ، شاباش. چلیں جی آپ مائک میوٹ کریں، ایک دفعہ اس کا ترجمہ میں پھر کر دیتی ہوں. دیکھیں اس کی جو تھوڑی ترکیب ہے نا، وہ تھوڑی بیچ میں 2-3 آیات آج ایسی ہیں، ان کی ترکیب تھوڑی سی ٹرکی ہے، آپ کہہ لیں مشکل نہیں ہے. وہ آپ ریکارڈنگ میں دوبارہ سن لیجئے گا. اگر کوئی پوائنٹ آپ کو نہیں سمجھ آیا تو پرسنل میں بھی بعد میں پوچھ لیجئے گا. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کو دہرا سکوں، حالانکہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آیت جب تک آپ میں سے ایک اسٹوڈنٹ کو کلیئر نہ ہو، ہم نے آگے نہیں جانا. اچھا اب اس طرح سے ہے، صرف میں ترجمہ کر رہی ہوں. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات ہو رہی ہے، مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے، اب یہ بھی یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، تمہارے لیے کافی نہیں، اب یہ کہہ دیں، یا آپ جس طرح میں نے آپ کو مصدریہ بنا کے بتایا کہ تمہارے رب کی مدد کرنا کافی نہیں ہوگا، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سمپل کر، کیا تمہارے لیے ہرگز کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہوگا. ہرگز اگر نہیں سوٹ کر رہا تو آپ ہرگز کے بغیر بھی بس ذہن میں رکھیں کہ لن آیا ہوا ہے. کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو اتارے گئے یا نازل کیے گئے. یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے گئے یا نازل کردہ فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں. حال کو چاہے اینڈ پہ لے جائیں جس طرح میں نے بتایا، چاہے اس طرح سے. چلیں جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. نہیں مجھے یہاں آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے پہلے کہ میں کچھ شیئر کروں، میں کہیں بھول نہ جاؤں، اب یہ پوچھا جا رہا ہے نا کہ الن یکفیکم. اب آپ نے نوٹ کیا حمزہ یہ حرف استفہام بھی آیا ہوا ہے اور لن حرف نفی بھی آیا ہوا ہے. تو جب کبھی ایسا اسلوب ہو نا، جب اس میں نفی بھی ہو استفہام بھی ہو، تو اس کا جواب عام طور پہ بلا کے ساتھ دیتے. ٹھیک ہے،
बला के साथ। मैं थोड़ा सा आपको बला का बता देती हूँ, ज्यादा नहीं। बला को अरबी में, ये एडवांस थोड़ी ग्रामर की कुछ बातें हैं, उनको हरूफे ईजाब कहते हैं। जब कोई आपसे कोई बात पूछता है तो उसका जब हमने जवाब देना होता है, जिन हरूफ से देते हैं उनको हरूफे ईजाब कहते हैं। ये 6 हैं कम अज कम लिसानुल कुरान के मुताबिक, वैसे इससे भी ज्यादा है। इसमें नाम है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई आपसे कुछ पूछता है तो उसका आप जवाब हाँ में देते हैं। उसने चाहे पॉजिटिव पूछा है नेगेटिव पूछा, लेकिन आपकी हाँ से बात कंफर्म हो गई। ज्यादातर नाम के साथ होता है। ठीक हो गया जी। जैसे कोई पूछे कि क्या जैद आ गया, तो आप कहेंगे नाम, इसका मतलब है कि हाँ जैद आ गया। ठीक है। और अगर कोई पूछे कि अम्मा जा जैद, क्या जैद नहीं आया, अगर आप इसका भी कहते हैं, अच्छा इसमें, अच्छा चलिए छोड़ दें, ये थोड़ा भी मुख्तलिफ तरह पे चला जाएगा। बस आप सिंपल इतना याद रखें, क्योंकि ये आपको बला से कंफ्यूज ना कर दे। मैं आपको बला क्लियर करके बताना चाह रही हूँ। हरूफ इजाब कम अज कम 6 हैं। सबसे ज्यादा नाम इस्तेमाल होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे आ सकता है और उन बातों को पक्का कर देता है, कंफर्म कर देता है। इसके अलावा बला इस्तेमाल होता है, बाकियों का कुरान पाक में बहुत कम इस्तेमाल है, बाकी हदीस और दूसरी अरबी में ज्यादा इस्तेमाल है। बला का पक्का पक्का याद रख लें। ऐसी बात, ऐसा कलिमा, ऐसा जुमला जिसमें नफी वाली बात हो रही है इस्तिफहाम के साथ, जिसमें मनफी इस्तिफहामिया बात हो रही है, यूं समझ। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं। अब इसमें इस्तिफहाम भी है और नफी दोनों आ गए। जब कभी ऐसा उसलूब आए तो ज्यादातर इसका जो जवाब है वो आप नाम से भी नहीं दे सकते, ला के साथ भी नहीं दे सकते। इसका जवाब आपको बला से देना होता है। तो फिर होता है हाँ, क्योंकि क्यों नहीं। ठीक है, नाम से देंगे वो भी गलत हो जाता है, और अगर आप कहते हैं कि ला, वो तो टोटली गलत है। तो बस इतना याद कर लें। तो अब ये जो पूछा जा रहा है, अलई यकफियकुम, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, तो इसका जवाब आगे बला में आ रहा है। लेकिन मैं बीच में, चूंकि कुछ टॉपिक पढ़ाना था मुझे, था मैं ऐसे बीच में कहीं भूल ना जाऊं। तो अब जो टॉपिक है वो मैं अब पीछे चलती हूँ, आपसे अब कुछ टॉपिक आज इंशाल्लाह शेयर करते हैं। चलिए तमहीज से शुरू करते हैं। ऐसा करते हैं, वैसे अच्छा तो मुझे यही लगता है कि मैं जिस आयत में जो चीज आती है उसको वहीं पे मैं अगर बताऊंगी तो समझ भी ज्यादा आती है। लेकिन मेरा मसला ये है कि जो मैं आपके साथ आयात शेयर कर रही हूँ ना, वो मेरे पीडीएफ वो अलग है और ये पीडीएफ अलग है, मुझे अलग अलग जाना पड़ेगा। तो ये एक ही दफा टॉपिक मेरे साथ अब सुन लें। आगे वैसे भी आयात बहुत आसान आ रही है, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी से वो कर लेंगे। बहुत सारी आयात इतनी आसान है, बहुत दफा हम कर चुके हैं, सिर्फ उनका तर्जुमा ही देखें। तमयीज क्या होती है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं हाल और बदल का ज्यादा इसलिए नहीं बताती, कि मैं आपको बता भी सकती हूँ, इंशाल्लाह बताऊंगी भी, लेकिन वो अगर मैं आपको उसके सारे कायदे कवायद रूल्स उसूल उस्लूब सारे बता भी दूँ ना, वो अप्लाई करते हुए इस तरह समझ नहीं आते, उनको टाइम लगता है। क्योंकि वो एक तो है भी ज्यादा, वो मुख्तलिफ जगहों पे जब आप उनको अप्लाई करते 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 फिर वो जब उस्लूब आता है ना, आप फौरन पहचान लेते। ठीक है, लेकिन तमयीज कंपैरेटिवली उससे आसान है। इसके कवायद अगर हम पढ़ लें, डिस्कस कर लें, तो हमें काफी फायदा हो जाता है चीजों को जल्दी से पहचान। वैसे मैं आपको सिंपल एक कायदा बताती हूँ। जब कभी कोई आप नकिरा मंसूब चीज देखें ना, सबसे पहले आप मफूल बिही का सोचा करें। अगर तो वो लाजिम है फेल, तो फिर मफूल बिही नहीं होगा, ये कुछ और ही बनेगा, ये हाल बन सकता है। लेकिन अगर मुतद्दी है तो फिर ये नकिरा मंसूब मफूल भी बन सकता है। ठीक है, फिर वो आगे देखना होता है, एक मफूल डिमांड कर रहा है कि 2 कर रहे हैं। अगर वो एक करता है और वो आ गया है वो मफूल भी, और फिर दोबारा कोई नकरा मंसूब चीज है, तो डेफिनेटली हाल बन जाएगा। ठीक है, और लेकिन अगर वो 2 मफूल डिमांड करता है और दोनों नकरा मंसूब चीज है, तो दोनों फिर उसका मफूल भी ही बनेंगे। जैसे वो हमने नवासिफ पढ़े थे, जैसे जन्ना व खवातुहा है। ठीक हो गया, खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। फिर नंबर 2, सबसे पहले क्या सोचना है, मफूल बिही सोचना है। अगर तो वो फेल लाजिम है तो फिर मफूल बिही भी नहीं सोचना, मुतद्दी है तो मफूल बिही बन जाएगा। नंबर 2 पे ये हाल बनेगा। नंबर 3 पे तमयीज बनेगा। अब तमयीज क्या होती है, ये वो मंसूब इसम होता है जो किसी कलिमा में किसी इसम या निस्बत के इबहाम को दूर करता है। मैं आपको जब समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी। आप बस इसकी डेफिनेशन को बस इतना ही समझ लें, जो किसी चीज की उसके अंदर कोई शक होता है, इबहाम होता है,
देखिए शक और इबाम में भी फर्क होता है, इंशाल्लाह ये फिर कभी थोड़ा सा फर्क है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें कोई बात किसी ने की है लेकिन वो क्लियर नहीं हुई, जब तक कि वो पूरा लफ्ज ना बोले, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा लफ्ज ना बोले या पूरी बात ना करे तो समझ नहीं आ रही। अब इसमें ये होता है कि ये दो तरह की होती है, जब मैं आपको इसमें बताऊंगी तो आपको ज्यादा समझ आएगी। एक होती है तमयीजुल ज़ात बोलते हैं, ये होती है जो आप कह लें कि किसी तादाद, वजन, कोई नाप वाली चीज, कोई एरिया, रकबा वो आए हुए हैं। तो आगे जैसे मैं कहूँ 3 किलो, फिर क्या 3 किलो, जब तक मैं ये नहीं बताऊंगी 3 किलो सेब, 3 किलो आम, तो वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह की कोई चीज आई हुई है, कोई गिनती आई हुई है, कोई वजन आया हुआ है, नाप आया हुआ है, रकबा आया हुआ है, तो उसका इबहाम दूर करने के लिए जो आगे तमयीज आती है ना, उसको तमयीजुल ज़ात कहते हैं। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, बस सुनती जाए। एक होती है, एक और तमयीज भी होती है, कुरान पाक में भी मिलेगी इंशाल्लाह, इसका भी इस्तेमाल है। बाज दफा जैसे मैं कहूँ कि जैद बहुत अच्छा, भी जैद किस लिए, जैद बहुत अच्छा इंसान है, बहुत प्यारा इंसान है, किस लिहाज से अच्छा है, जब तक मैं ये नहीं कहूंगी इल्म के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से, तो वो क्लियर नहीं हो रहा। तो अब जो जैद की ये एक निस्बत से रिलेटेड है, ठीक है, जैद की उस चीज के साथ जो निस्बत बन रही है। अच्छा, या मैं कहूँ कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, मैं किस लिहाज से बड़ी हूँ, मैं उम्र के लिहाज से बड़ी हूँ, इल्म के लिहाज से बड़ी हूँ, इज्जत मर्तबा जो भी है, तो वो चीज आगे जब तक नहीं आएगी तो इबहाम रहेगा निस्बत पे। इसलिए ये चूंकि निस्बत से रिलेटेड है तो इसको इसका अलग नाम दे दिया है। आप लोगों को कोई जरूरत नहीं इनके नाम अलग याद करने की, बस मैंने बताया इसलिए कि तमयीज सिर्फ गिनती वजन में ना ढूंढते रहिएगा, तमयीज इस तरह भी आ जाती होती है कि बाज औकात किसी जुमले में इस तरह से भी कि उसकी बात हो रही है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन किस लिहाज से, वो फिर जब तक आगे वो चीज ना आए तो पता नहीं चलता। तो इसको, ये तमयीज की एक और किस्म है, इसमें निस्बत का ताल्लुक होता है। अब जो याद करने वाली बात है, थोड़ा गौर करने वाली बात, ये जो निस्बत वाली तमयीज होती है हमेशा मंसूब होती है, लेकिन जो वजन वगैरह की होती है, ये गिनती की और रकबा नाप वगैरह, वो मंसूब भी हो सकती है, वो मजरूर भी मिल सकती है रेयर लेकिन मिल सकती है। वो मजरूर किस तरह से हो सकती है, बाज दफा उसके साथ मिल लगा होगा, और बाज दफा वो जिस चीज का इबहाम दूर करना है ना, उसी का मुदाफिला बनकर आई होती है। ये भी रेयर है, जब आएंगे तो मैं दोहराई करवा दूंगी इंशाल्लाह। बस सीखने की बात ये है कि जो तमयीज होती क्या है, वो किसी इस्म का इबहाम दूर करने के लिए, उसका जो बात कही है वो क्लियर नहीं हुई, उसमें इबहाम रह गया है, उसको दूर करने के लिए एक लफ्ज आता है, तो इसको तमयीज कहते हैं। और जिसका इबहाम दूर किया जा रहा है उसे मुमय्यज कहते हैं। अब तमयीज वजन में भी हो सकती है, अदद में सबसे ज्यादा गिनती में आपको मिलेगी, इसके अलावा वजन में, रकबे में, नाप की चीजों में, जब कभी आएंगे इंशाल्लाह हम देख लेंगे, तो ये सब चीजें मुमय्यज हो जाएंगी। आगे जो लफ्ज आ रहा है इनको दूर करने के लिए, इनको, वो जो है तमयीज बन जाएंगे। अब यहाँ पे आज गिनती इस्तेमाल हुई है, तो गिनती जो होती है वो मुमय्यज होती है, जैसे 3 कहूँ, 5 कहूँ, 500 कहूँ, ये मुमय्यज है। अब आगे जब तक वो लफ्ज ना आए, वो इसम ना आए कि क्या 3, क्या 5, क्या 7, तब तक ये क्लियर नहीं होता। वो फिर आएगी तो वो फिर इसकी तमयीज बनेगी, फिर ये दोनों मिलके कुछ एक चीज बन जाती है। इसको छोड़ दें, बस क्या है, आज के लिए इतने काफी है। थोड़ा सा आपको आइडिया देना था कि ये गिनती आई है तो गिनती हमेशा मुमय्यज बनती है, वैसे उसकी तरकीब और भी तरह से की गई है, लेकिन ये मैं चूंकि गिनती बनती ही मुमय्यज है ज्यादा, तो इसको ही लेके चलते हैं। इसके अलावा और क्या है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये मैं अभी आपसे नहीं पूछती, पहले मैं आपसे पूछती हूँ, बस फिर मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले ना ये कर लेते हैं, फा सबबिया फा तालीलिया। देखिए आज की आयत नंबर, लेकिन कौन सी आयत थी, आयत नंबर 128 में वो लफ्ज आता है फ़इन्नहुम ज़ालिमून। पीछे क्या बात चल रही थी, पीछे बात चल रही थी कि अल्लाह ताला चाहे उन्हें सजा दे, चाहे उन्हें अजाब दें, चाहे मेहरबान हो जाएं और चाहे उन्हें अजाब दें, क्योंकि वो है तो जालिम, ये काम अल्लाह ताला के, इसमें और किसी का कोई इख्तियार नहीं है। उसमें आया है फा इन्ना। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी फा इन्ना आता है या ली अन्ना आता है, ये हरूफ तालील के तौर पर आते हैं, इनका मतलब होता है क्योंकि। लेकिन आपके ज़हन में आ सकता है कि ये फा का नाम क्या है, तो वैसे तो ज्यादा हम फा, ये जजाया या राबता ही मिलेगा जो जवाब शर्त पे आता है, या फा ये आतफा मिलेगा, ठीक है। बाकी ये जो फा सबबी वगैरह होते हैं ना, वो भी आतफा ही होते हैं।
تو یہ زیادہ ضرورت نہیں ہے، ایسے میرا دل چاہ میں ایک دفعہ آپ سے شیئر کر دوں کہ یہاں فا انا آیا ہے تو یہ فا تعلیلیہ ہے. تو شاید کسی بہن کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ فا سببیہ اور فا تعلیلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے. اور بھی فرق ہے، ایک مین فرق یہ ہے، اگر یاد رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ چیزیں بھی میں آپ کو بتا دوں ایکسپیرینس سے. ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ جب آپ آیت پڑھیں گی نا، آپ آیت کا ایک حصہ پڑھیں گی اور پھر جب دوسرا حصہ پڑھیں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ پہلا حصہ دوسرے حصے پہ کس طرح اثر کر رہا ہے اور بعد والا حصہ پہلے والے حصے پہ کس طرح اثر کر رہا ہے. اگر تو اس طرح سے ہو کہ جو پہلے والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، وہ وجہ بن رہا ہے اور بعد والا نتیجہ بن رہا ہے، یعنی کہ تو محنت کر تو کامیاب ہو جائے گا. اب یہ جو فا ہے یہ سببیہ ہے. ویسے فا سببیہ آپ بہنوں کو شاید پتا ہوگا، وہ پہچانا جاتا ہے بڑے آرام سے. وہ عام طور پہ مضارع پر آتا ہے، اس کو اس کے بعد ایک ان چھپا ہوتا ہے اور اس نے منسوب کر دیا ہوتا ہے اس مضارع کو، تو وہ ہم پہچان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کا تھوڑا ترجمے پہ بھی اثر پڑتا ہے. یہ ہمارا آج ٹاپک فی الحال نہیں ہے. پھر فا تعلیلیہ آ جائے، اس میں اب پہلے والا حصہ نہیں، اس میں بعد والا حصہ وجہ بن رہا ہے پہلے والے کی. اب جو اللہ تعالیٰ عذاب دے رہے ہیں اس لیے عذاب نہیں دے رہے کہ عذاب دے رہے ہیں کہ وہ اس لیے ظالم ہے، نہیں، کیونکہ وہ ظالم ہے اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے، دے سکتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو. ٹھیک ہے، تو اب اس میں بعد والا جو حصہ ہے فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اپنے مصحف سامنے رکھے، اس پر آپ دیکھ سکتی ہیں جو میں بات کر رہی ہوں، آیت نمبر 128. اب اس میں آیت کا دوسرا حصہ، بعد والا حصہ پہلے والے حصے کو ایکسپلین کر رہا ہے. اب بعد والا حصہ وجہ بن رہا ہے. ایسے فا کو فا تعلیلیہ کہتے ہیں. یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اس کی قرآن پاک سے یہ مثال ہے، فَخْرُجْ مِنْهَا، تو اس سے نکل جا. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کیونکہ تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، دور کیا ہوا رحمت سے، جو بھی اس کے معنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ رجیم ہے اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ تو نکل جا. اور جبکہ اوپر والے میں کیا ہے، فا سببیہ میں جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو وہ سبب بن رہا ہوتا ہے بعد والے کی. اچھا ویسے یہ سبب اور علت میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا بلاغت کا بہت گہرا سا پوائنٹ ہو جائے گا، وہ میں آج نہیں، پھر کبھی آپ سے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ فا تعلیلیہ آ رہا تھا. اور کیا آ رہا ہے آج؟ اور آج او آئے گا. آج ایک دو جگہ پر او آ رہا ہے. اچھا او دیکھیں، وہ آپ آیت نکال لیں. او آج آ رہا ہے ایک تو آیت نمبر 127 میں، تاکہ وہ ان لوگوں کا ایک حصہ، ایک بازو کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، یا وہ انہیں ذلیل و رسوا کر دے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے بھی آیا ہے اگلی آیت میں، آپ کا اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، خواہ وہ ان پر مہربان ہو جائے. اب یہ جو او ہے نا، اصل میں او جو ہوتا ہے یہ حرف عطف ہے. سمپل اگر میں آپ کو بتاؤں، پہلی اور آخری بات، بیچ والی سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی بات. اس کا معنی عام طور پہ یا کے ساتھ کرتے. اب اس یا کی ڈیٹیل میں نے کچھ کلاسز پہلے آپ سے ایک اور انداز میں شیئر کی تھی، آج تھوڑا ایک اور انداز میں کر رہی ہوں. بالکل نہیں یاد کرنا، صرف سن لینا ہے کہ یہ عربی گرامر میں، صرف و نحو میں ہوتا کیا ہے، کس طرح وہ لوگ کتنی گہرائیوں میں جا کر چیزوں کو سمجھتے ہیں. اصل میں تو یہی عربی ہوتی ہے نا، ہمیں جس طرح اردو کو ہم سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ عربی کو بھی ایک دن آئے گا ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ یہ کس طرح بات کی گئی ہے. لیکن جب تک یہ نہیں سمجھ آتی تب تک آپ کے لیے کافی ہے کہ او حرف عطف ہے. ٹوٹل 10 ہوتے ہیں، اس میں سے ایک او ہے، اور یہ عام طور پر 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا تھا تخییر کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو مثالیں دے کر بتایا تھا. اب اتنا آج ٹائم نہیں ہے، وہ پرانی ریکارڈنگ مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ وہ کس والی اس کی تھا ویڈیو میں، چلو مل جائے گا انشاءاللہ. تو تخییر ہوتا ہے دو چیزوں میں سے ایک کو لینا، یا تم یہ لے لو یا تم یہ لے لو. اور اباحت میں بھی یہ ہوتا ہے، تم یہ بھی کر سکتے ہو تم یہ بھی کر سکتے ہو. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تخییر میں آپ جمع نہیں کر سکتے ان دونوں چیزوں کو. جیسے کہ تم ایک وقت میں تم اس سے شادی کر لو یا اس سے کر لو. فرض کرے 2 بہنیں ہیں تو تم اس بہن سے کر لو یا اس بہن سے کر لو. اب ان کو جمع تو نہیں کیا جا سکتا نا. یہاں پر اگر او آئے گا، عطف تو ہے لیکن وہ اس طرح سے جوڑ نہیں رہا، جمع نہیں کر رہا، وہ تخییر کے معنی میں آ رہا ہے، دو چیزوں میں سے ایک کو لینا. اباحت کیا ہوتا ہے؟ تم قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ تم کھانا کھا سکتے ہو، ادھر سے بھی کھا سکتے ہو، اس گھر سے بھی، اس گھر سے بھی، اس گھر سے بھی. تو وہ آپ چاہیں تو ایک وقت میں ایک بھی کھا سکتے ہیں اور اب سب سے بھی کھا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو جوڑا جمع کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، بعض اوقات یہ شک اور ابہام کے لیے آتا ہے. نمبر 3، کچھ چیزوں کی تفصیل کے لیے یا تقسیم کے لیے. نمبر 4، اضراب کے معنی میں بھی آتا ہے. اضراب کہتے ہیں یہ بل کا معنی دیتا ہے، ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت بتائی
कि सुमा कसत कुलूबुकुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए, जैसे कि कल फाहिया कल ही जा रहा थी, जैसे कि वो पत्थर है, औ अशद्दु कसवा, या उससे भी ज्यादा सख्त। ठीक है, तो उसमें जो औ है ना वो बल के माना में है, उनके उससे भी ज्यादा, वो बिल्कुल बात पिछली चेंज हो गई है कि उनके पत्थर जैसे हो गए या उससे भी ज्यादा सख्त। खैर ये चीजें मैंने कहा ना आपको एक्सपीरियंस से आएंगी इंशाल्लाह, सिर्फ सुनती जाए। आज जो मैंने नए तरीके से बताया है वो मैं ये बताया है कि आमतौर पर जब कोई अमर नहीं इस्तिफहाम वगैरह आए ना, तो उनके जवाब में अगर औ आ रहा है उनके आगे, तो वो आमतौर पर तखयीर या इबाहत का माना देगा। लेकिन अगर ये वाला उस्लूब नहीं है, आम जुमला खबरी है, उसके बाद आ रहा है, जैसे वो खड़े होंगे क़यामत वाले दिन, वो कहेंगे कि पता नहीं वहां हम कितने दिन रहे, पता नहीं 1 दिन या 2 दिन, सपोज मैं आपको ये बता रही हूँ, उसमें ये शक है या इबहाम है, तो वो अब उससे पहले कोई आ, नहीं, इस्तिफहाम, अमर, ऐसा कोई उस्लूब नहीं है। ठीक है, तो इसके जवाब में जब आएगा तो वो शक का माना देगा। मैं दोबारा से बताती हूँ, अगर कभी नहीं, अमर, नहीं के आगे ये औ लगा हो तो ये तखयीर या इबाहत के माना में आता है। अगर कभी ये सिर्फ जुमला खबरिया नॉर्मल है, उसके बाद आ रहा है, तो ये शक और इबहाम के माना में आएगा। तफसील तकसीम बहुत कम है, जब कभी आएगा आपको पता चल जाता है। जैसे मैं कहूँ कि कलिमा की 3 किस्में हैं, या इसम या ये या वो, इनके बीच में जो आता है वो इस तरह से कि तफसील या तकसीम बता रहा है। तो इदराब में टोटली माना चेंज हो जाता है। अब आपको बल के माना तब पता चलेंगे अगर आपको बल याद होगा कि मैंने कितनी तफसील से पिछले साल बताया था। ये इंशाल्लाह आगे कभी बल आएगा ना, मैं आपको दोबारा से वो रिकॉल हम करेंगे। आपको अगर बल का पता हो ना, बल किस माना में इस्तेमाल होता है, तो आपको ये भी समझ आ जाए कि अच्छा आओ बल के माना में भी इस्तेमाल होता है। तो ये चीजें ये थोड़ी बलागत की हैं, ये हम ज्यादा करते नहीं है। और मैं बिल्कुल आपसे कह रही हूँ आपने नहीं याद करनी, सिर्फ सुनते जाएं कि एक तरफ मैं ये कह रही हूँ कि औ का माना या है, आप या करें आगे चली जाए। लेकिन अगर आप शौक रखती हैं, आगे इंशाल्लाह टीचिंग का भी इरादा है, तो आपको ये भी महसूस होना चाहिए कि ये या किस किस तरह से आ रहा है, कि या तुम ये कर लो या तुम ये कर लो, तो उस या के भी माना कितने ज्यादा हैं, किस किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। और कभी यही औ बल के माना में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो अब ये चीजें इंशाल्लाह वक्त के साथ आएंगी, छोड़ दें इनको। अच्छा, आज करने की बात ये थी कि यहाँ पर ये जो आज इस्तेमाल हुआ है, इसकी एक राइड ये है, आयत नंबर 128 वाला जो औ है, उसमें सर ने भी शायद यही कहा कि यहाँ पर अन छुपा हुआ है, और इसको उन्होंने किसी और माना में किया। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही थी कि अगर आप इस औ को सिंपल आतिफा बना लेना, तो औ यतूबा अलैहिम, इस यतू औ की वजह से यतूबा का आप पीछे वो यकता आप यक बीता वगैरह पर आप अगर अतफ कर लेंगी तो आप बहुत इजी रहेंगी। आप इस औ को सिंपल आतिफा बना लें, बस ये मैं कहना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये कहती हैं कि अगर इस औ की बात अन छुपा हुआ है, तो औ एक ऐसा भी होता है जो इन 4 किस्मों के अलावा एक औ होता है, उसमें अन छुपा होता है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि वो औ इला या इल्ला के माना में आए, जो यहाँ ऐसा नहीं आ रहा है। ठीक है, या अगर आ भी रहा है तो वो हमारे लेवल से ऊपर की बात है, आप फिलहाल छोड़ दें। लिहाजा इस औ को आप सिंपल आतिफा कहकर बस या के साथ माना हम इसका कर देंगे, लेकिन ये वाले 4 ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये आप बस सुन लें। बाकी अगर कोई आपसे ये कहे कि इन चारों मानों में इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ इसका माना, लेकिन औ आया हुआ है, लेकिन वो अपने बाद वाले मुदारे को मंसूब भी कर रहा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि औ 5वीं तरह से भी इस्तेमाल हो सकता है। एक औ ऐसा भी होता है जिसके बाद अन छुपा होता है। बस मैंने ये कहना था, इसकी थोड़ी ये डिटेल्स है। एक और बात, इसको हम छोड़े हैं। अब आज इस्तेमाल हुआ आयत नंबर किसमें हाजा, जब वो तुम्हारे पास, हाँ, आयत नंबर 125 निकाले। इसमें आया है मिन फौरिहिम हाजा व यअतुकुम मिन फौरिहिम हाजा, वो तुम्हारे पास आए। अब ये जो मिन फौरिहिम हाजा, इसका तर्जमा कैसे करना है, ये पहले मुझे आप हैंड रेस करके बताएं कि अगर मुरक्कबे इजाफी में इशारा आए उसे कैसे इस्तेमाल करें। कौन बताएगा, माइक ऑन करें और बता दें, बस इतना टाइम नहीं है। मुरक्कबे इजाफी में अगर इशारा इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें। मैम उसको सिफत बनाएंगे। नहीं, ये तो बात की बात है, आता कैसे, किसका इशारा, और कैसे पता चलेगा मुदाफ का है कि मुदाफ इलैह। ये बेसिक की बात पूछ रही हूँ मैं, कोई और बताए, माइक ऑन करें और बता दें। का होगा। ये हिम का होगा। और अच्छा, ये हिम का होगा।
तर्जमा कैसे करेंगे? मिन फौरिहिम हाजा, वो अपने इसी जोश में या इस जोश अपने में, इस जोश से, तो इसका मतलब है ये हिम का नहीं है, अपने इस ये जोश फॉर से। का है ये, ठीक है। तो यहाँ ये अच्छा, कायदा है कि देखिए ये बेसिक की बातें हैं, ये अब आपको ये कम से कम मुश्किल नहीं लगनी चाहिए जो मैंने अभी पीछे बताई है ना। हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा एडवांस है, अभी मैं पूरा एडवांस नहीं शेयर करती आपसे, सिर्फ आपके कानों को सुनवा देती हूँ कि आपको अंदाजा हो कि अरबी की डेप्थ क्या है। बाकी तो हम नहीं इतना करेंगे इंशाल्लाह, आप बिल्कुल ना परेशान हो। अगर आज की क्लास किसी को मुश्किल लग रही है तो हमारी हर क्लास ऐसे नहीं होती। आज थोड़ा मुझे टाइम मिल गया तो मैंने जल्दी जल्दी ये सारी चीजें लिखकर, मेरा दिल चाह के मैं एक दफा आपसे शेयर कर दूं। हो सकता है अगले कई हफ्ते मुझे टाइम ना मिले और मैं ये ऐसी चीजें कोई एडवांस ना शेयर कर सकूं, मैं बेसिक ही रिवाइज करवाती रहूं। तो इस क्लास से बिल्कुल किसी ने ये नहीं लेना, मैं नाराज होंगी अगर कोई एक क्लास से कोई आप जजमेंटल ना हुआ करें कि मुश्किल पढ़ाया जा रहा है। और अगर मुश्किल है तो छोड़ दें, जो समझ आई उसको ले लें, अगली किसी क्लास में इंशाल्लाह और चीजें समझ आ जाएंगी। अब मैं बेसिक का क्वेश्चन मैंने पूछा है, अब किसी ने रिप्लाई नहीं किया, अब ये बेसिक आपको आना चाहिए। अगर आज मैं बेसिक बता रही हूँ वो मुश्किल लग रहा है तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। देखिए बेसिक का रूल है, मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल और मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल। तो इशारे का याद रखें, अगर आप मुरक्कब इजाफी में इशारा इस्तेमाल करना चाहती हैं, पहले सिफत का बता दें। याद रखें, मुरक्कब इजाफी में मुदाफ या मुदाफ इलैह, इनमें से किसी की भी सिफत आएगी ना, उसने हमेशा जाना मुरक्कब इजाफी के एंड पर है, उसने बाद में जाना। अब वो पता कैसे चलेगा कि ये मुदाफ की है ये मुदाफ इलैह की? वो आपको एराब से पता चलेगा। अगर उस सिफत का एराब ये मुदाफ जैसा है तो मुदाफ की सिफत है, मुदाफ इलैह की तरह मजरूर है तो मुदाफ इलैह की सिफत है, सिंपल। इसी तरह मुरक्कब इजाफी में इशारे का इस्तेमाल, इसमें थोड़ी वेरिएशन, इसमें ये है कि मुदाफ का एंड पे ही जाएगा, लेकिन मुदाफ इलैह का अगर कभी इशारा उसकी तरफ होगा तो वो उससे पहले आएगा, ठीक है। ये आप पेज नंबर इधर आ रहा होगा, शो हो रहा, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, पढ़ लीजिएगा। अभी मेरे पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं, मेरा वैसे इरादा था मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगी। मैं दोहरा देती हूँ, मुरक्कब इजाफी में अगर सिफत आती है तो वो हमेशा एंड पे जाएगी और उसके एराब से पता चलेगा वो किसकी है। लेकिन मुरक्कब इजाफी में अगर इशारा आए तो मुदाफ का कुछ भी आ जाए उसने एंड पे ही जाना। मुदाफ की सिफत आ जाए एंड पे जाएगी, मुदाफ का इशारा आ जाए एंड पे जाएगी। लेकिन मुदाफ इलैह का क्या है, सिफत आएगी तो बाद में, लेकिन अगर उसका इशारा आ जाए तो वो उससे पहले आएगा। अगर ये हिम का इशारा होता तो इसने इस हाजा ने हिम से पहले आना था। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, वैसे तो ये गलत है, नामुमकिन है, लेकिन वैसे बता रही हूँ। ये फौर का इशारा है इसलिए बाद में आया है, हिम का होता तो पहले आना था। और आप तर्जुमा भी यही कर रही हैं कि अपने इस जोश से, इसका मतलब है हाजा इसका है। तो चूंकि अब ये मैंने आपको बताया कि इशारा कैसे इस्तेमाल होता है, तो बस एक छोटा सा रूल याद रख लें, इस तरह से कभी इशारा आए मुरक्कब इजाफी के बाद तो वो सिफत बनकर आता है। और अब वो किसकी सिफत है तो वो आप इस तरह भी याद कर सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पे इस तरह नहीं याद कर सकती कि इसका एराब तो पता ही नहीं चल रहा है तो मबनी है। तो फिर आपको ये यही याद रखना पड़ेगा कि ये अगर ये हिम का होता तो हिम से पहले आना था, ये फौर का है इसलिए बाद में आया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। हो सकता है मेरे बताने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ हो, मैंने आपसे कहा ना हर टीचर डिफरेंट अंदाज में बताते हैं। इवन मैं खुद एक टॉपिक एक दफा कुछ और तरह से बताती हूँ, दूसरी दफा और तरह से बताती हूँ, तो इंशाल्लाह बस सुनती जाए। चलें जी, ये अब हम वापस चलते हैं अपनी आयात की तरफ। अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, बहुत बहुत बीच में सिंपल है, उनको जल्दी से करेंगे इंशाल्लाह। और अब कौन थी मेरे साथ, राबिया जी थी, आ जाए राबिया जी। जी बला, अभी आप मैम आपने बहुत अच्छा समझाया, उसके लिए जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत यकीन सारी करें जब मैं आपको बातें कुछ बताती हूँ समझ में ना, आई। मुझे इतनी जी फिक्र होती है क्लास से पहले भी और बाद में भी, पता नहीं अल्लाह ताला जी को समझ आई है कि नहीं आई, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। ये तो मेरा शौक है, बस मैं जो मुझे समझ आया मेरा दिल चाहता है मैं आप लोगों को भी समझाऊं। अच्छा नहीं भी आया ना, घबराया ना करें, अगली दफा मैं दोहराऊंगी, हो सकता है मैं ऐसे दोहराऊं कि आपको समझ आ जाए इंशाल्लाह। चले जी, शुरू इंशाल्लाह। करें जी। बला हर्फ इजाब है, ये आप समझाई चुकी हैं अभी। इन इन हर्फ शर्त यहाँ पे है। तस्बीरु फेल मजारे है, स्वाद बारा बाबे जुआत से आया है, और इन ने इसको इनको छोड़ मजबूत दें राबिया जी, ये छोड़ दें, हमारा टाइम कम है। तस्वीरों का भी सब बहनों को पता है, तत्ता को हुआ भी सबको पता है, या तू का भी, फेल बस मजारे मुझे ये बताएं। हाँ, ये मुदारे जूम है, जी। ये आपने इनको क्या बनाया? इन यहाँ हर्फ शर्त है,
शर्तिया, क्योंकि ये मुदारे मजसूम होकर आ रहे हैं। जी शाबाश। इन तस्वीरों, अगर तुम सब्र करो, इसका फाइल क्या है? तुम सबर करो, अंतुम फाइल है, या वाव ज़मीर भी कह सकती हैं। वाव को क्या वाव बनाएंगी? वाव अतफ हो जाएगा। ये इस पर तत्तकू। तत्तकू भी फेले मजारे है, वाव काफ या बाबे नहीं, बस इत्तियाक। डिटेल ना बताइए, बहुत दफा कर चुकी है। अब मेरे सवालों के जवाब देती जाए। ठीक तत्तकू, ठीक इस फेल को आपने पीछे अतफ कर दिया, ठीक है। आगे फिर जी, कौन सी वाव आ रही है? फिर वाव अतफ है, और या तूकुम को फिर उसको भी इस पर पीछे अतफ कर दिया। यहाँ तक फिर का तर्जुमा कर अतफ हो जाएगा। या जी हाजा तक का। जी, मिन फौरिहिम हाजा, ठीक है। क्यों क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और डरते रहो, और वो अपने जोश में तुम पर आ पड़े। और वो अपने इस जोश से, ठीक है, अपने हाँ, इस जोश वो से अपने तुम्हारे इस पास जोश आए में या तुम पर आ तुम पड़े, पर दोनों तरह आ से ठीक पड़े। है। जी, अब जवाब शर्त बताएं। अब और ये जवाबी शर्त। मिन फौरिम हाजा, ये जार मजरूर मुतल्लिक के फेल हो गया, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें अगर मैं बताते हुए कुछ मिस कर जाया करूँ ना, तो यकीन कीजिए ये मेरा ख्याल है, ये अब आपको आनी चाहिए। ये किसी स्टूडेंट को पूछने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बन रहा है। कुछ चीजें इतनी बेसिक होती हैं। हाँ, कभी कुछ इंपॉर्टेंट भी मुझसे मिस हो जाती है, मुझे इतना कुछ बताने का मेरे जेहन में होता है कि कुछ चीजें रह जाती हैं। लेकिन जो चीजें इस तरह की रह जाया करें ना, तो उनको खुद से बना लिया करें, परेशान ना हुआ करें। चले जी, इसका जवाब और शर्त बताएं। और ये वो यहाँ तक युमदीदुकुम से शर्त शुरू हो हो रहा है। गई, हाजा तक इनका शर्त है, ये जुमला शर्तिया बन गया। और अब युम दिद कुम, ये पहले मजारे है, मजलूम हो रहा है, और मीम दाल दाल बाबे फाल से। ठीक है, आपको फिर कैसे पता चला ये जवाब शर्त है? क्योंकि यहाँ से हाजा तक तो जुमला वो हो गया ना, अब ये इसके बाद ही जो है बात समझ में आ रही है तर्जुमे में। बाकी अच्छा, बहुत आपने ज्यादा तर्जुमे से अंदाजा किया है। देखिए, जवाब जी, शर्त बस का एक तो पता तर्जुमे चलता है, से। एक तो जी वो अगर तो मुदारे है तो मजूम होता है। दूसरा, हाँ, जवाब शर्त पे तो है। आपको पता है कि फा जजाइया या फा राबता होता है, लेकिन इस पर फा जी, जजाइया फा राबता नहीं आया, इसे पहचानने में मुश्किल हो सकती है। क्यों नहीं आया फा इस पर? इस पर फा क्यों नहीं आया, क्योंकि नहीं समझ आया मैं। माजी पर कभी फा नहीं जब माजी जुमला, हाँ, माजी फेल जी माजी जवाब शर्त बनता है, उस पर फा कभी नहीं आता। लेकिन जब मुदारे जवाब शर्त बनता है, उसमें 50-50 होता है, फा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर फा आ जाता तो हमने फौरन पहचान लेना था ये जवाब शर्त है। लेकिन अब हमने इसलिए पहचाना कि मुदारे मजसूम हो रहा है। शाबाश। रब्बुकुम, इसका ये फाइल हो गया। आगे ये सेम वही आयत है जो पीछे गुजरी है, इसको सिर्फ तर्जुमा जी करें। मैं हाँ, सारी ये डिटेल इसकी बता चुकी हूँ, सिर्फ मुसव्वी मीन ठीक का बता ठीक। दें और तर्जुमा कर दें। तो तुम्हारा रब 5,000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करेगा। जो जो क्या है? मुसव्वी मीन हाल तो बन रहा है फिर से अलमलाइका का। की मीन जो खास निशान वाले होंगे, अच्छा, यहाँ पे क्योंकि ये भी रुकिएगा। फुल फाइल है। देखिए, जी शाबा, इसमें फाइल है। वैसे मैं आपको सही बताने लगी थी, बताने लगी थी, असल में इसका तर्जुमा होगा निशान लगाने वाले, ठीक है। अच्छा, लेकिन अक्सर निशान उलमाए किराम ने इसका किया हुआ है वाले। निशान जदा, वो हालांकि इसमें मफूल का बनता है। असल में ये अलमलाइका है जो निशान लगाने वाले। सही तर्जुमा ये है, जो इस हाल में कि वो निशान लगाने वाले होंगे, लेकिन उन्होंने इस तरह किया, कर लें, लेकिन असल में बनता नहीं है वैसे वो। अच्छा, मीम पर पेश आई है, तो मीम पेश वाली हो तो इसमें फाइल ये सब मफूल आपके जहन में आना चाहिए। आगे सव्वा मा युसव्विमु, बाप वो जो है तफील, उससे आप देख लें, उससे ये इसमें फाइल बन रहा है। मीम पर नहीं, इसका ऐन कलिमा पर जेर होगा तो इसमें फाइल, ऐन कलिमा जबर होगा इसमें मफूल। तो ऐन कलिमा पर जेर है तो ये इसमें फाइल है, निशान लगाने वाले, ठीक है। यहाँ पे रुक जाइएगा, मैं एक दफा फिर तर्जुमा करती हूँ। ये जुमला शर्तिया है, इसमें शर्त पहले शुरू हो रही है, बाद में जवाबु शर्त है। अगर तुम सबर करो और तकवा इख्तियार करो, या और डरो और गुनाहों से बचो, इसको बहुत तरह से आप तत्ताकूका कर सकते हैं। और वो तुम्हारे पास अपने इस जोश से आए या आप पड़े। एक जगह मैं इसका तर्जुमा देख रही थी कि वो फौरन आए तुम्हारे पास, लेकिन खैर ये फौर जो होता है ये जोश ही होता है। अपने इस जोश से तुम्हारे पास आए तो जवाब शर्त, चाहे फा जजाइया फा राबता नहीं नजर आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि मुदारे मजूम हो रहा है, जवाब शर्त है। तो यहाँ पे फिर सुन लें, अगर जवाब शर्त माजी हो, उस पर फा कभी नहीं लगता।
اور ایک اور بات, اگر مضارع ہو تو اس پر فعل لگ بھی سکتا ہے, نہیں, اور اگر یہ یہاں پر فعل لگا ہوتا مضارع پر تو پھر اس نے مجزوم نہیں ہونا تھا, پھر یہ یومدد نہیں ہونا تھا, یہ اس لیے مجزوم نظر آ رہا ہے, اس پہ فا نہیں لگا ہوا. اچھا جی, تو وہ تمہارا رب فائل کا پہلے کرنا ہے, تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا جو نشان لگانے والے ہوں گے, یا یوں بھی کر سکتی ہیں کہ تمہارا رب 5000 نشان لگانے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. چلیں جی, یہ پچھلی آیت اور یہ ملتی جلتی ہیں, اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آئی تو اس میں انشاءاللہ آگے ہوگی, اس میں سے نہیں آئی تو دوبارہ پھر ریکارڈنگ سن لیجئے گا, کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. رابعہ جی, آپ نے ایک آیت کی ہے کہ 2 کی ہیں؟ اس سے پہلے والی بھی کی ہے میم, آپ کی 2 ہو گئی ہیں. 126 چلیں کی. کسی اور کو جی بلاتے ہیں. آپ بارک اللہ جی. فیک. صفیہ, اب جزاک. آپ آ جائیں. صفیہ کا یہ اکثر میں دیکھتی ہوں, جب صفیہ آتی ہے تو یہ اسلوب اکثر یہی ہوتا ہے, حسر والا. صفیہ, مجھے آج آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. مومنہ جی آپ آ جائیں, اتنا ٹائم نہیں ہے, اور یہ بہت سمپل آیات ہیں, بس جلدی سے کر دیں. میں جی پوچھتی جاتی ہوں, ایسا کرتے ہیں وقت بچ جائے گا, مجھے سوالات کے جوابات دیں, کچھ جو بہت ایزی چیزیں وہ ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے زیادہ سسٹرز ایسی ہیں, اس کلاس میں اگر ایک ایک بات ہم نہیں بھی کھولتے تو وہ اتنی سال 1.5 سے الحمدللہ زیادہ بہنیں جو نہیں ہے ان کو تو ظاہر ہے محنت کی ضرورت ہے, وہ ریکارڈنگ ریپیٹ کر لیا کریں. باقی کچھ مس ہو جاتی ہے تو تیاری کرتے ہوئے کر لیا کریں یا بعد میں دیکھ لیا کریں. اب میرے سوالات کے بس جوابات دیتی جائیں. واؤ کو کیا بنائیں گے؟ میں مستانفہ. ماں ماں حرف نفی ہے کیسے پتا چلا؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے نا. شاباش. اللہ سے پہلے جو ماں آتا ہے وہ نافیہ ہوتا ہے, اور پھر اگر اللہ سے پہلے ماں آ جائے تو اب اللہ حرف استثناء نہیں رہے گا, یہ حسر کا مفہوم دے گا. جعلہ اللہ, اس میں اللہ لفظ جلالہ کیا ہے؟ یہ فائل ہے. ٹھیک ہے, شاباش. جعلہ جو ہوتا ہے یہ وہ ظنہ و اخواتها میں ہم نے جو پڑھے تھے نا, ایک جی افعال القلوب پڑھے تھے, ایک افعال التحویل پڑھے تھے, وہ والے افعال جو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے ہیں. اچھا, جعلہ کم از کم 4 طرح سے استعمال ہوتا ہے. آج بالکل ٹائم نہیں ہے, میں انشاءاللہ آپ بہنوں سے کبھی شیئر کروں گی, بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ افعال شروع کے طور پہ بھی آتا ہے, اور زیادہ تر اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں جب ایک حالت سے ایک چیز کو ایک سے دوسری میں بدلتا ہے. تو اب یہاں دیکھتے ہیں. اچھا, اس میں آگے اللہ آ گیا, جب ماں اور اللہ آ جائیں تو ماں اور اللہ کو گرا کر پھر ترکیب کرنی ہے. اور جب بھی حسر اسے کہتے ہیں مستثنی مفرغ بولتے ہیں. اب یہ جو بشرا لکم ہے نا, یہ اب پچھلے جملے کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا, ماں اور اللہ گر جائیں گے. تو بشرا کو کیا بنائیں گی؟ بشرا کو مفعول بنائیں گے. کون سا مفعول مفعول؟ مفعول بھی ہی بنائیں گے. ثانی دوسرا. جالا ہو ہا ضمیر پہلا, بشرا دوسرا. بشرا مصدر کا وزن ہے, وزن ہم ایسے یاد نہیں کرتے ہیں, لیکن جی لکم اس کے متعلق ہو سکتا ہے. تو بشرا لکم مفعول بھی ثانی ہو گیا. ترجمہ کر دیں. جی. اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے ایک خوشخبری. ماشاءاللہ, سب سے آسان ترجمہ یہ ہے حسر والے کو اس کا اسی طرح کر لے جو بگنرز ہیں. ویسے آپ اس کو یوں بھی کر سکتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے صرف ایک خوشخبری بنایا. ٹھیک ہے, یہ خوشخبری ہی بنایا. آگے واو. واو یہاں پہ عطف ہے. لی تطمئن, لام کیا ہے؟ یہ لام کئی ہے, لام تعلیل ہے. تطمئنہ کے جلدی سے مادے کے حروف اور باب بتا دیں. مہینہ میم ربائی فعل ہے. تو ربائی میم ہے, حمزہ نون میم باب حمزہ نون. استقلال سے ہے. شاباش باب اف اللال, بالکل ٹھیک ہے, باب اف اللال. ٹھیک ہے, یہ جی اگر اس میں شاد نہ ہوتی تو یہ باب اف اللال بھی ایک باب ہوتا ہے, وہ باب ہوتا ہے ثلاثی کا. ہم ثلاثی مزید کے صرف 8 پڑھتے ہیں, اس کے کم از کم 12 ابواب ہیں. یہ ہے باب اف اللال, یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس صرف سن لیں, یہ ربائی کا ہے. اچھا جی, قلوبکم کیا بنا؟ قلوبکم یہاں مرکب اضافی ہو کر فاعل بن رہا ہے. فائل بن گیا, بھی جار مجرور متعلق ہو گیا. اس جملہ فعلیہ کا ترجمہ کر دیں. جی. اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, یہ اطمینان پائیں. اور یہاں 2 رائے ہیں, بعض نے لی تطمئنہ کو بشرا پر کیا ہے عطف, اور ایک بعض نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک فعل محذوف مان کر اس کا اس کو متعلق بنا دیا. کیونکہ یاد رکھیں جب بھی لام تعلیل آتا ہے نا, بیسیکلی لام تعلیل لام کئی لام جارہ ہوتا ہے, بس فرق یہ کہ یہ مضارع پر آتا ہے, یہ متعلق ہی بنتا ہے. اچھا جی, آگے پھر سمپل وہی حسر کا مفہوم ہے, صرف ترجمہ کر دیں, ہم اس کی تفصیل نہیں کریں, صرف ترجمہ کریں. اور مدد نہیں ہے مگر اللہ
के पास से। जो क्या है, ये दोनों सिफात बन रही हैं अल्लाह ताला की, क्या है, जो अजीज है, हकीम है, कि जो सब पर गालिब कमाल सब पर हिकमत गालिब, कमाल हिकमत वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, इसका यूं भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने किया, जो जिस तरह नजर आ रहा है वैसे ही कर ले, और मदद नहीं है मगर अल्लाह के पास से या अल्लाह की तरफ से, और यूं भी कर सकते हैं और मदद तो सिर्फ अल्लाह के पास से है या अल्लाह की तरफ से। आप यूं भी कर सकते हैं, क्योंकि हसद जब होता है उसका तर्जमा सिर्फ या ही के साथ करते हैं। अच्छा, जब आपने अल्लाह कह दिया, अल्लाह की तरफ से है या अल्लाह के पास से है, जो अल अजीज अल हकीम है, उसका तर्जमा इन्होंने कर दिया। अगली आयत करेंगे, यकता, फिर लामे ताली लामे कई, ये फिर मुतल्लिक बनेगा एक महजूफ फेल के, ठीक है। चले जी, यकता तारफन, तरफन मौसूफ है, फिर मिनल लजीना कफरू, ये पूरा सब मिलके इसकी सिफत बनेगा और ये मफूल भी बन जाएगा मौसूफ सिफत में। शाबाश। तारफ मिनल्लज़ीना काफरू, ये जार मजरूर आ रहे हैं, नकरा के बाद उसकी सिफत बन गया, तो तारफन मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर ये मफूल भी हो गया। तो यहाँ तक का तर्जुमा था। ताकि वो इन लोगों का एक हिस्सा काट दे जिन्होंने कुफ्र किया। बहुत अच्छा तर्जुमा, माशाल्लाह। तारफन जो होता है ये वैसे किनारा होता है, लेकिन इसका बाजू के साथ भी बाज ने तर्जुमा किया, वो भी ठीक है, क्योंकि बाजू जो है वो ताकत की, कुव्वत की अलामत होती है, और इसके अलावा एक हिस्सा इन्होंने किया, ये भी ठीक है। औ औ जो आ गया, मैंने आपसे कहा औ हरफ अतफ है, ज्यादातर या के साथ तर्जुमा करें। आगे हम देख लेंगे कि इसको क्या करना है, वो इसकी जो तफसील है जो मैंने बताई है, आपके शौक पर है कि जब औ आए तो आप खुद महसूस करें कि यहाँ किस माना में इस्तेमाल हुआ है। हम सिंपल हरफ अतफ कहेंगे और या कहेंगे, और यक बीता का पीछे यकता पर अतफ कर देंगे। क्यों, कैसे हमें पता चला कैसे अतफ करना है यकता पे? में भी एक जुमला फेलिया होकर मातूफ हो जाएगा पीछे लियक्ता पर। हाँ, और ये भी है ना, ये यक बीता देखे ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यकता मुदारे यकता मंसूब हो रहा है, तो इसको पीछे मुजारे वो यकता पे करते हैं, क्योंकि जो फिर यकता पे, ये हाँ, क्योंकि यक बीता जो है ये मुदारे मंसूब है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि इससे पहले कोई हर्फ ऐसा तो नहीं आ रहा नजर हमें, तो ये अतफ होने की वजह से अब ये भी मंसूब हो गया यक बीता, ठीक है। जी अगर फर्ज करें पीछे ये अतफ हो रहा होता और किसी ऐसी चीज पर जो कि यकता की तरह ना होती, तो फिर हमने एक और यानी कि मैं जो आपको पांचवी तरह मैंने बताया ना कि बाज दफा एक औ ऐसा भी होता है जिसके बाद अंत छुपा होता है, और उसके बाद वाला जो है वो, ये थोड़ी डिटेल में चला जाएगा, मैं इन चीजों को डिस्कस नहीं करना चाह रही, वो हमने देखना होता है वो औ किस माना में है, कि छोड़ दें बस। आप सिंपल इसको अतफ कर दें, बाई चांस आपका अतफ आराम से पहचाना जा रहा है कि यक बीता, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये यक बीतू था, यक बीतू से यक बीता हुआ, क्यों हुआ, नई बहनें गौर किया करें। तो फिर ये इसकी वजह ये यहाँ पर ये है, आपने ये नहीं कहना कि औ के बाद अंत छुपा हुआ है। औ के बाद अंत तब छुपा होगा जब औ एक खास माना में आएगा और उसके पीछे अतफ वाली कोई चीज की यकता की तरह मंसूब नहीं होगी। यहाँ पर तो क्लियर आप यकबिता को यकता पे अतफ कर सकती हैं। आगे चले जी, फयंग कालिबू, कलिबू, तो आप ये भी जो है हर पे अतफ हो जाएगा, कलिबू भी ये फेल और हम फाइल इसमें हो जाएगा, और ये भी जो है जुमला फेलिया बनेगा, खाइबीना ये हाल होगा हम अच्छा जमीर यहाँ का। पर एक राय ये भी थी कि यंग कालिबूना को ये नून जो गिरा ये मंसूब है, और ये जो है फा सबबिया है, उसका तर्जमा भी मुख्तलिफ है। आज बिल्कुल टाइम नहीं है, आज इसको छोड़ दे, आज इसको फा अतिफा करके बस पीछे अतफ कर दे और बड़े आराम से तर्जमा हो जाएगा इंशाल्लाह। खाइबीना क्या है? खाइबीना मैम जो है ये जमा फुल फाइल का सीगा है, और ये हाल बन रहा है हम जमीर फाइल का। खाइबूना खाइबीना खाइबीना, शाबाश। जब भी कोई चीज आपको लगे ना कि ये नसब और जर दोनों की शक्ल बन सकती है, तो जर को तो आप अगर कोई चीज इससे मजरूर हो रहा है और उससे पहले आप देख लिया करें हरफ जर है या ये मुदाफिला है। अगर इससे पहले हरफ जर भी नहीं है, ये मुदाफिला भी नहीं बन रहा, तो बस फिर आप इसको मजरूर ना लिया करें, ये मंसूब होता है। यहाँ पर भी ये हाल के तौर पर आया है। अच्छा, इसके बारे में भी और भी राय है, लेकिन बस हम हाल बनाएंगे, ठीक है जी, तर्जुमा करें। अ, या इन्हें जलील कर दे, और यक बितहूं या उन्हें जलील कर दे, बस वो नाकाम वापस लौट जाएं। शाबाश, नाकाम ना मुराद दोनों तरह से इसका माना हो सकता है। लियक्ता तारफन, ताकि वो उन लोगों का एक हिस्सा काट दे, जैसा कि मैंने आपको भी जो पीछे बैकग्राउंड बताई थी गज़वा बदर में, ठीक है, उनका एक हिस्सा काट दे, उनका बाजू काट दे जिन्होंने कुफर किया, या वो उन्हें जलील कर दे, जलील और रुस्वा कर दे, बस वो या सो
وہ خائبین ہوکر, وہ ناکام ہوکر, نامراد ہوکر پلٹ جائیں, یا وہ پلٹ جائیں اس حال میں کہ نامراد ہو کر, جیسے چاہے آپ کو حال کا اچھا لگے. آپ نے ایک آیت کی ہے یا 2 آیات کی ہیں؟ میں نے ایک آیت کی. یہ دوسری بھی آپ نے کی. اچھا اچھا یہ اس آیت کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو چل رہا ہے نا سلسلہ, یکتا یہ مضارع منصوب ہوا, یکبتا منصوب ہوا, او کی وجہ سے پیچھے عطف کر دیا, آگے یتوبہ پھر منصوب آ رہا ہے, اس کو اس او کی وجہ سے پیچھے عطف کر دے, آگے یعذبہ منصوب آ رہا ہے, اس کو ان سب کو عطف کرتی جائیں, آپ آسانی میں رہیں گی. کیونکہ اس کو میں پھر آپ سے کہوں گی, اس او کو اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اس او کو کے بعد ایک ان چھپا, تو اس کی پھر آپ کو او کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہ دیکھنا پڑے گا. ہم وہ نہیں کریں گے, ہم ان سب او کی وجہ سے ایک دوسرے پر عطف کر دیں, یہ سب سے آسان ہے. اور لیس لک من الامر شیء کو جملہ معترضہ مانا گیا ہے کیونکہ یہ بیچ میں آ گیا, وہ باتیں چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے انہیں یہ کر دے, چاہے انہیں وہ کر دے, چاہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن بیچ میں اچانک سے ایک یہ بات آ گئی, اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ غزوہ احد میں جب تلوار کے وار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مطابق یہ رخسار کی ہڈی پر زخم آیا تھا یا سر پہ چوٹ لگی تھی, ان کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے تھے, بہت خون بلیڈنگ اور سارا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا تھا, اتنا خون بہہ گیا تھا کہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی. تو ایک رائے میں کے مطابق جب ہوش میں آئے تو زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے. ایک اور جگہ پر یہ بھی تھا کہ انہوں نے ان کے نام لے کے مشرکین کے ان کو بد دعا دی تھی. جو بھی ہے وہ, لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کو یہ تھا کہ یہ جو ہدایت دینا ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کس کو ہدایت دینی ہے, کس نے بھٹکتے رہنا ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ صرف وہ تبلیغ کریں, دعوت دیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بیچ میں آ گیا وہ اتنی ضروری باتیں چل رہی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے انہیں یکبتا ہوں, یا وہ خائبین ہو کے پلٹ جائیں, یا ان پہ مہربان ہو جائے, یا انہیں عذاب دے, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. نبی کے وسلم کسی بھی نبی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ بیچ میں جملہ معترض آیا ہے. جی لیسا کا اس میں خبر بتا دیں. لیسا کا لکا جار مجرور جو ہے خبر مقدم ہے لیسا کی, اور من الامری جو ہے یہ جو ہے آگے شیئن کا حال بن رہا ہے جار مجرور ہو کر, اور یہ دونوں ذوالحال اور حال کر یہ اسم لیسا مؤخر ہے. شاباش, ترجمہ کر دیں. بالکل صحیح, ماشاءاللہ. تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس کا دیکھیں سمپل تو یہ ہے, نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کچھ بھی. الامر ہے نا, تو یہ خاص ہے, یہ اس کا مطلب ہے. اچھا اس کا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں. آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ آپ کے اختیار میں اس معاملے سے کچھ نہیں. تو یہ بہت طرح سے کر سکتے ہیں, سب ٹھیک ہے. آگے او یتوب علیہ, او حرف عطف ہے میم, اور یہاں بھی ان والی بات آئے گی, ان مصدریہ کی وجہ سے یتوبہ جو ہے منصوب ہو گیا, اور یہ ہوا فاعل ہے, اس میں علیہم جار مجرور متعلق ہو گیا یتوبہ فعل کے, پھر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ صلۃ الموصول حرفی بنا ان مصدریہ کے لیے جو محذوف ہے. ٹھیک ہے. ان یہ ان مصدریہ نہیں اپنے دیکھیے, میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی آپ اس کو نہ مانے یہاں پر, پیچھے جب عطف ہم کر دیتے. جی پیچھے عطف کریں, کیونکہ اگر آپ یہ ان محذوف مانتی ہیں تو آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کیا او الا کے معنی میں ہے یا اللہ کے معنی میں ہے. ان دونوں کے معنی میں آئے گا تو ہی ہم یہاں پر ایک ان مقدرہ مانیں گے, ویسے ان مقدرہ نہیں ہوتا او کے بعد. ٹھیک ہے, سمپل او کو عطف مانے, سمپل یتوبہ کو پیچھے آپ عطف کر دیں. میں آپ کو یہ تو تھوڑا ٹائم لیا تھا آپ لوگوں کا, میں یہی بتا رہی تھی. جی کریں. تو پھر یہ پیچھے عطف ہو جائے گا, اور دوسرا والا او بھی حرف عطف بنا لیں گے, یعذبہم یہ بھی جو ہے تو مضارع منصوب ہو رہا سب ہے. عطف ہو گئے, چاہے آپ سب سے پہلے والے کو معطوف علیہ کہہ کے باقی سب کو عطف کرتے جائیں, یا اپنے سے پچھلے والے پہ عطف کرتے جائیں. اچھا یہاں پہ تا با با آیا, باب نون سے تا با یتوبو, اس کا آپ کو پتہ ہی ہوگا ماشاءاللہ, بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں. اصل مطلب ہوتا ہے پلٹنا. تو اگر بندہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف سے اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر, تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا. اور اگر اللہ پلٹتا ہے اپنے بندے پر شفقت اور رحمت کے ساتھ, اس کا مطلب ہے توبہ قبول کرنا یا مہربان ہونا. تو آپ یا دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. پتہ کیسے چلتا ہے, یہ اللہ کے صلہ سے جب آتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہو رہے ہیں, اس کی توبہ قبول کر. اور جب الہ آتا ہے تو بندہ الہ ٹو ورڈز اللہ کی طرف توبہ کر رہا ہے, رجوع کر رہا ہے, پلٹ رہا ہے, توبہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی نہ بھی لکھا ہو تو وہ وہاں پہ محذوف مانا جاتا ہے. چلے جی بس اتنا ہی, اور ترجمہ کریں. جی, یا وہ ان پر مہربانی فرمائے.
हाँ, या इनकी तौबा कबूल फरमा ले, ऐसे भी तर्जुमा किया गया, या इन पर मेहरबान हो जाए, ठीक है, जी और या वो इन्हें अजाब दे, तो क्या है आपकी, फ़इन्नहुम ज़ालिमून। अब क्योंकि ये बिला मैं आपको फ़इन्ना मैंने जालिम आज है। वो फ़ा तालीलिया बताया जी, ठीक है। और अगर किसी को फ़ा तालीलिया सबबिया नहीं समझ आए ना, तो आप लिख लें फ़इन्ना ली अन्ना, जब भी आए इनका मतलब होता है क्योंकि। ये अब इसका मतलब है कि जो इनके बाद चीज आ रही है ना, वो इल्लत वजह बयान कर रही है पहले वाले जुमले की। चलें इस तरह याद करें। हाँ जी, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, इन्ना अपने इस खबर से मिलकर आप इसको, वैसे हम ठीक है इसको, हालेलुया हाँ बन गया। ठीक है, वजह करें बता, तर्जुमा। क्योंकि बिला शुबा वो जालिम है। क्या बात, ज़ालिमून किस वजन पर है? इस्मुल फाइल से होगा, इस्मुल फाइल पे ये जमा का सुलासी सिग्मा मुजर्रद से आया, ये फाइल उनके वजन पे है। इसमें फाइल है, उसकी जमा है ज़ालिमूना, और ये ज़ालिमूना रफा हालत में, इसलिए ये इन्ना की खबर बन रही है। ये इन्ना के आराब आने चाहिए, काना के आराब सबको पता होने चाहिए। यहाँ पे इसका इसम किस हालत में है और इसकी खबर किस हालत में है। इसम हम जो है तो वो मबनी, लेकिन उसका आपको पता होना चाहिए आराबी हालत। शाबाश, चले एक बार मैं तर्जुमा कर देती हूँ, ठीक है जी, आप म्यूट कर दे माइक। आपके लिए ये मैंने आपको बता दिया कि लैसा लका नहीं है आपके लिए इस मामले में कुछ भी, और अगर आप प्रॉपर तर्जुमा से करना चाहें तो दो तरह से यूं कर सकती हैं। कम से कम आपको इस मामले में कुछ इख्तियार नहीं, ठीक है, ये थोड़ा रिस्पेक्ट देने वाले सेंस में आ रहा है ना। अब आप देखें कि हम तो ये अल्लाह ताला और नबी के वसल्लम का मामला है, नबी के वसल्लम ऐसी गलतियां तो नहीं होती थी, तो लेकिन अल्लाह ताला को उनकी छोटी सी गलती भी, देखो वो इस लेवल पर थे कि छोटी सी गलती पे भी फौरन उनकी किस तरह से करेक्शन हो रही है। तो हमने ये नहीं कहना इस मामले में आपके लिए कुछ नहीं है, या आप का और भी बहुत तरह से तर्जमा किया गया, मुझे वो इतने रिस्पेक्टफुल नहीं लगे। मुझे ये वाले थोड़ा रिस्पेक्टफुल लगे कि इख्तियार नहीं है आपका, ठीक है, आपको इस मामले में कुछ इख्तियार नहीं, या आपके इख्तियार में इस मामले में कुछ भी नहीं। तो ये बहुत रिस्पेक्ट से हमने ये बात करनी है। ये अल्लाह ताला नबी के वसल्लम का मामला है। तकलीफ में उनके मुंह से जो निकल गया था कि वो कौम कैसे फला पाएगी जो अपने नबी को जख्मी कर देती है, और भी इसके बारे में बहुत सारी हदीस है। मेरे पास टाइम नहीं है, इवन मैं आपके लिए बहुत कुछ रख के बैठती हूँ, लेकिन बहुत कुछ रह जाता है। चले फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आगे। ख्वा या या वो उन पर मेहरबान हो जाए, उनकी तौबा कबूल कर ले, या वो उन्हें अजाब दे, क्योंकि बेशक वो जालिम है, ठीक है। तो ये आपने गौर करना है कि ये फाइंदा के बाद वाला चीज वजह है, उनके जालिम होने की वजह से अल्लाह ताला ये कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे कौन आएंगे? आगे बहुत सिंपल आयत है। सफिया बेटा आपका देखो जरा, आवाज आती है कि नहीं? इनका सिर्फ तर्जुमा करना है, इसमें सिर्फ वो रिबा वाली आयत को मैं 5 मिनट दूंगी, बाकी के सिर्फ तर्जुमे करें। चले मैं कर देती हूँ। वह आयत नंबर 129, वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है। जार मजरूर मुकद्दम हो रहा है, हसर पैदा हो रहा है। कैसे पता चला? मैंने इसको मुतल्लिक क्यों नहीं कहा, मुतल्लिक मुकद्दम, क्योंकि इसके बाद कोई फेल नहीं है, इसके बाद इसम है, तो ये खबर मुकद्दम बन जाएगा जार मजरूर। इसके बाद जो मौसूल सिला मिलकर मुब्तदा मौखर जुमला इसमिया। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। ये इससे मिलती जुलती आयत सूरह अल हदीद में भी की, उसमें दोबारा माँ नहीं आता था, लेकिन सूरह सफ में सेम ये वाला हिस्सा था। यगफिरु लिमन यशा, वो जिसे चाहता है बख्श देता है और जिसे चाहता है अजाब देता है, और अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। गफूर फऊल के वजन पर है, मुबालगे का वजन, रहीम फ़ईल के वजन पर है, ठीक है। और बाकी ये जो फ़ईल का वजन होता है, ये इसमें फ़ाइल से मफ़ूल के माना में इस्तेमाल होता है, वो हम देख लेंगे। बाकी सिंपल है। यज़्ज़बा युअज़्ज़िबु किस बाब से सिंपल पहचाने जा रहे हैं। ये शाह इतनी दफा आया। अगली आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर कान खड़े हो जाने चाहिए, कॉन्शियस हो जाए, खुश भी होना है कि हमें मुखातिब करें, अल्लाह ताला हमसे बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा आपने अब बहुत बहुत खास बात आने वाली है। अच्छा, ये मैं ना इस थोड़ा सा आपके 1-2 मिनट लूंगी। देखिए ये जो ना पुराने पाक में जैसे शराब है और सूद है, इसका ना अल्लाह ताला ने जिसे कहते हैं ना बतदरीज ग्रेजुअली इनको हराम किया, यकदम नहीं कहा कि छोड़ दो, क्योंकि इंसान की नेचर में कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो पहले ये कहा गया कि ये चीजें अच्छी नहीं है, इनके नुकसानात हैं, इनके फायदे थोड़े हैं, नुकसान ज्यादा है। जैसे सूरह बकरा में शराब के बारे में ये बताया गया कि इनके जो नुकसान है इनके फायदों से इनके ज्यादा है, ठीक है, इनके फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी कबाहतें बताई, उनका उनसे थोड़ा सा ना, जैसे कुछ चीजें आपका दिल उसकी तरफ से थोड़ा खराब हो जाए, इस तरह से कि वो अच्छी नहीं है, इनको छोड़ना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनसे नफरत दिलाई, क्योंकि इंसान के लिए आसान नहीं होता यकदम इन्हें छोड़ना। फिर इनका फाइनल हुक्म आया। तो आया देखने में ये सूरह बकरा में ये फाइनल सूद के बारे में आई है आयात,
لیکن وہ ترتیب کے لحاظ ان کی بعد میں ارینجمنٹ ہوئی ہے تو اس میں وہ آیا ہے. ادروائز سورہ روم اور بھی کچھ صورتوں میں یہ اس طرح کا ذکر آیا ہے. تو ان میں پہلے رغبت دلائی اچھی چیزوں کی, بری چیزوں کی ان کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ نفرت دلائی گئی. آہستہ آہستہ پھر یہ فائنل ہوا. تو اسی طرح سے اس میں بھی تو یہاں پر اب یہ ہے کہ سود کا یہاں پر سود کی کافی اقسام ہوتی ہے. اب اتنا میرے پاس بالکل ٹائم نہیں. ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں, سود مرکب کہتے ہیں. وہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ سود نہیں دے سکا تو اس کے اوپر پھر اتنی پرسنٹیج بڑھ گئی, پھر نہیں دے سکا پھر اور بڑھ گئی, پھر اور بڑھ گئی. وہ بیچارہ اصل چیز کیا دینی تھی وہ سود پہ سود ہی دیتا رہا. وہ کتنی غلط ناپسندیدہ اور اتنی یہ چیز ہے. اور یہ اس میں یہود میں بہت کامن تھی, بعد میں بھی, ابھی بھی بہت آپ لوگ جانتے ہوں گے اس بارے میں کہ اس سے پوری طرح سے ہماری سوسائٹی میں جان نہیں چھوٹی. کہیں نہ کہیں یہ چیز آپ کو ملتی ہے, لیکن یہ بہت ناگوار ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ کام کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے, جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ جنگ. اب اس طرح تو کوئی نہیں سوچ سکتا. اچھا خیر, اب اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گی اس میں اضافاً اور مضافاً کے الفاظ آئے ہیں, ان پر تھوڑا سا غور کر لیں. باقی اور ہاں ایک اور پوائنٹ تھا, بس بہت پیارا پوائنٹ تھا کہ یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ غزوہ احد کا بات چل رہی, بیچ میں غزوہ بدر کی بات چلے. غزوہ بدر کی اس لیے آ گئی, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسان کی نیچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ انسان کی نیچر ہے جب پریشانی آتی ہے اگر اس موقع پر اگر اچھا وقت یاد کرے کہ تب بھی تو میرے پہ برا وقت آیا تھا اور تب گزر گیا تھا نا, اور تب میرے اچھا وقت بھی تو آ گیا تھا, تو یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں غزوہ بدر کی باتیں کی, ان کو دل جوئی کی, کیونکہ غلطیاں ان سے ہوئی تھی غزوہ احد میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے غلطیوں کی نشاندہی کی اور بہت محبت اور اپنائیت سے کی. تو وہ اس کا اس لیے ذکر آیا, لیکن اب بیچ میں یہ اس لیے ذکر آ گیا یہ سود کا کہ اصل غلطی ایک جو مین تھی اس میں یہ بھی تھی کہ نبی کے وسلم کی ٹھیک ہے نافرمانی بھی, اور وہ جو ان کے دلوں میں اس کا مطلب ہے کہ وہ دولت کی محبت تھی جو انہوں نے جس ٹیلے پہ کھڑا کیا تھا ان کو تقریباً 50 صحابہ کرام کو. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کفار تو چلے گئے ہیں اور وہ جو مال غنیمت ہے لوگ سمیٹ رہے ہیں, تو ان کے دل میں ظاہر ہے وہ ایک فطرت ہے, نیچرل ہے, وہ آیا اور انہیں جب اکٹھا کرنے لگے, مین جو یہ غلطی ہوئی تھی. تو اب اس موقع پہ کہ اس کا مطلب ہے کہ دل میں محبت ہے دولت کی, جو کہ سب کی ہوتی ہے, ایک حد تک ہونے میں غلط بھی نہیں ہے, لیکن وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. تو آگے چل اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ چیزوں کو بس اتنا ہی رہنا جتنی کی ضرورت ہے, ان کو بہت زیادہ آپ نے نہیں کرنا. اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سود, کیونکہ سود ایکسٹریم ہوتی ہے دولت سے محبت, اتنا خود غرض ہوتا ہے وہ انسان جو سود لیتا ہے, اس کو شدید ترین محبت ہوتی ہے اسے دولت سے. اب یا الذین آمنو, اے ایمان والو, اس کی ترکیب بہت دفعہ گزر چکی ہے. لا تأکلوا الربا, تم ربا مت کھاؤ, تم سود مت کھاؤ. کیسے؟ اضعافا مضاعفتا. اضعافن کا اگر ہماری اس لطف الرحمان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھیں تو ضعفن کی جمع ہے, ضعفن ہوتا ہے. آج یہ بھی میں نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا تھا, لیکن آج کی آیات ویسے سمپل تھی لیکن ان میں اتنا کچھ تھا شیئر کرنے کے لیے. ضعفن کی جمع اضعافن, اس کا معنی ہوتا ہے دگنا. ضعفن کا بھی دگنا, اضعافن کا بھی دگنا. مضاعفتا مصدر ہے مفعلہ کا, اس کا مطلب ہوتا ہے کئی گنا. اصل میں یہ ڈکشنری یہ بتا رہی ہے, لیکن میں ایک اور جگہ پہ دیکھ رہی تھی بڑے اتھینٹک سورسز میں, وہ اضافن کا لیتے ہیں کئی گنا اور مضاعفتن کا لیتے ہیں دگنا. تو جو بھی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دگنا چگنا کر لیں یا کئی گنا کر لیں بڑھا چڑھا کر اس کو. لیکن یہ اتنے اللہ تعالیٰ نے اضافن بھی آیا جو کہ ضعفن کی جمع, پھر مضاعفتن آیا, دونوں موصوف صفت مل کر حال بن رہے ہیں ربا کا. ٹھیک ہے, اے ایمان والو تم سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر, یا کئی گنا بڑھا چڑھا کر, یا دگنا چگنا کر کے. اور بھی بہت سارے ترجمے, بس مطلب سمجھنے کا ہے. اصل ترجمہ میں دگنے چگنے کر کے بھی بتا دوں نا آپ کو کہ اگر اس کا یہ ہے وہ ہے, اصل میں مطلب سمجھے کہ کتنا کتنا زور ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا, مضاعفتن یہاں پہ مصدر آیا, ویسے یاد رکھیں زیادہ تر اسم الفاعل اور اسم المفعول حال بنتے ہیں, کبھی کبھار مصدر بھی حال بن جاتا ہے, پھر وہ یا اسم الفاعل کے معنی میں آتا ہے اسم المفعول کے معنی میں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ جو لعل والے جملے ہوتے ہیں انہیں جملہ تعلیلیہ کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ پھر کبھی دیکھیں گے الگ سے, ان کی ترکیب آپ کر کے اس کو الگ کر لیں. آیت نمبر 131, واتقوا النار, اور آگ سے ڈرو, اور اس آگ سے ڈرو, النار. ٹھیک ہے, ابھی خاص یہ سود کے کانٹیکس میں آ رہا ہے. اللہ تی, یاد رکھیں اللہ
ती, अल्लाजी, अल्लाजी, अल्लाजीना, जो भी ये इसम मौसूल जब कभी कायदा लिख लें मारफा के बाद आते हैं तो उस मारफा के लिए सिफत बनते हैं। तो अब अल्लाती यहाँ पे सिफत आ रहा है, मौसूल सिला मिलकर सिफत बनेगा अन्नार का। और उस आग से बचो या उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और इद्दत आइन दाल दाल बाबे फाल का मजबूल है और इसका नाइब फाइल इसके अंदर होगा या की जमीन, ठीक है, जो पीछे इस आग की तरफ लौट रही है। पहले तो ये अल्लाती की तरफ जाएगा, ये मौसूल सिला का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर ये सारा अन्नार की तरफ। लेकिन एनीवे सिंपल जो आपको लगता है बस आप मैच कर लें। आगे क्या आखिरी आयत, यकीन कीजिए ये आखिरी आयत जिसे मैं सिर्फ 1 मिनट में मुकम्मल करने जा रही हूँ। ये अपनी तफसीर में और हमारे सीखने के लिए बस ये एक आयत भी काफी है कि अगर हम अल्लाह ताला की और उसके रसूल रसूल आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मुराद है, बस उनकी अताअत करें कि तो ही हम पर रहम किया जाएगा। और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, तो वाओ आइन ये और बाबे फाल से, और ये वो अजवफ के कवायद के मुताबिक बनता है। ये मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कैसे बना है, ये अमर है। और अल्लाह लफ्ज़ जलाला मफूल भी ही और रसूल भी मफूल भी है, लेकिन 2 मफूल भी नहीं कहना। हमने अल्लाह लफ्ज़ जलाला को मातूफ अलैह बना लेंगे और रसूल को मातूफ बना लेंगे। हम कहेंगे मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर अब एक चीज बना, मफूल भी ही। और अल्लाह और रसूल की अताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ठीक हो गया जी। चलें जी, कुछ रह गया होगा तो कुछ चीजें सिंपल बीच में रह भी जाए तो कोई बात नहीं। आप माशाल्लाह बहुत सीनियर स्टूडेंट्स हैं बहुत सारी इस ग्रुप में, तो खुद कर लिया करें। बाकी कुछ फिर भी रह गया हो और कुछ गलती होगी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई कमी बेशी जो भी है तो पर्सनल में पूछ लीजिएगा। मैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर रही हूँ।